ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ इजराइल ਤੇ पहुंच गए कि इजराइल बनिया कदों? इजराइल ते हमेशा तो थी। आपने एक नया क्लेम कर दिया है कि ये रिलीजियस भी था। मैं कहता हूँ परफेक्ट, हो सकता है रिलीजियस हो, मेरे पास नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज मुझे यहाँ पे दे दें, वो ज्ञान मुझे यहाँ पे दे दें कि ये रिलीजियस कैसे था प्लीज। क्योंकि वहां पर पगड़ी वालों की लड़कियां उठाई गई, उनके गलों में टायर डाले गए, किसी और के नहीं डाले गए। पॉलिटिकली था ना, क्योंकि पगड़ी वाले ही जाके उस पॉलिटिक्स के साथ लड़ाई कर रहे थे, लिहाजा पॉलिटिकल था, इनसाइटेड बाय द पॉलिटिक्स था। तो ये धर्म भी था। नहीं, धार्मिक कैसे था वो बताए ना। धर्म भी, जब आप एक पर्टिकुलर घरों के निकाल कर सिखों को ही मारोगे तो फिर रिलीजन ही हो गया ना। नहीं, पॉलिटिकल था ना। देखिए प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट मुर्तिद। Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. हाँ जी मिस्टर AOR साहब। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी आपने सिख गए हो तुसी? हाँ जी सिखिया जी। कि और तुसी खालिस्तानी सुनाओ है? की हाल चाल है? मैं ठीक है जी। तुसी सुनाओ, खालिस्तानी है या खालिस्तानी किसी के गए हो? नहीं एडम भाई दसा की गल है, जी तुसी उस स्ट्रीम की ना, वो मैं सारी सुनी है ते ओदे मेरा सवाल कुछ और है रिकॉर्डिंग फिलहाल। मेरा सवाल कुछ और है फिलहाल, ताकि पता लग जाए ना, फिर गल्लां करांगे ना मजीद। पहले आया तो पता लग जाए तुसी सिख गए हो या खालिस्तानी गए हो। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ यार ਆਪਾਂ मैं ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ सवाल ਨਾ कीता, ਖਾਲੀ। ऐ तो नहीं मेरा नहीं सवाल नहीं है, पहले मेरा पता लग जाए तुसी खालिस्तान बनाना है, कंट्री बनाना है कि नहीं? नहीं खालिस्तान नहीं बनाना, पर मैं ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यानी कि तुसी कह रहे हो जो लोग बना रहे ने वो चंगा करते पे ने, ਜਿਹੜੇ नहीं बना रहे वो भी चंगा करते पे ने। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੈਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸੁਣੋ ਭਰਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਮਝ, ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ 1947 ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ? ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 1947 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਆ,
ਮਤਲਬ ਸਦੀਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੋਂ ਨਾ। ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਰਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਧੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ, ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ, 3000 BC, 2000 BC, 2500 BC, 1000 BC, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਹਿਜਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਿਜਾਜ਼ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ ਹਿਜਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। या खुदाया ਹਾਂਜੀ, तेरा याद रहा। मुझे यार मेरी दोस्तों, बात मुझे कन्फर्म लग रहा है कि मैं एक मुसलमान से बात कर रहा हूँ। मेरी जब वो संगा से बात अरे हुई ना लास्ट नहीं टाइम, भाई, तो नहीं मैं नहीं 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 संगा मुझे कहता था कि एरम भाई, आप जब इनसे बात करोगे ना, तो आपको नहीं कन्फर्म नहीं, पता वो लगेगा कि ये एक भाई, मिनट, मैं बात खत्म कर लूं भाई, आप मुझे बात, मैं हाँ आपसे बात ही नहीं करिए। कर रहा, मैं तो थोड़ी सी अभी आपसे आता हूँ, वापस पंजाबी में बात करता हूँ, ताकि आपके साथ मैं आपकी जुबान में बात करूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको लैंग्वेज का बैरियर है। तो रिलैक्स नहीं, हो जाए थोड़ा। मुझे कोई नहीं है, मुझे हिंदी तो भी आती है तो कोई। दोस्तों, मैं ये पहले सोच रहा था कि जो संगा है ना, गलत कह रहा है। वो बार बार मुझे कह रहा था कि आप जब इनसे बात करोगे तो आपको पता लगेगा इनमें और मुसलमानों में बात करने के स्टाइल में कोई फर्क नहीं है, सीधा जवाब कोई भी नहीं देगा ना। तो वो हाँ सही कह रहा अब था। पहले मैं इस नहीं बंदे से बोल चुका हूँ कि यार, यार, इंडिया का आजकल नाम क्या है क्या नहीं है, डज नॉट मैटर। मुझे बता कि ये कंट्री जो पहले हिंदुस्तान के नाम से थी, हिंद के नाम से थी, भारत के नाम से थी, सऊदी अरेबिया में जिसको पहले हिजाज कहते थे, वहां पे इस जगह को हिंद कहते थे। डज नॉट मैटर ये कितने अरसे से है। ये बंदा मुझे जवाब नहीं दे रहा, ये जवाब नहीं दे रहा, ये लेफ्ट राइट गई जा रहा है, मुझे नहीं जवाब मिल रहा। भाई साहब, एडम भाई सीधा सवाल के बताऊं, लिए सीधा जवाब क्यों नहीं आ सकता? मुझे बताएं, नहीं ये जो सीधा ये जो हाँ कंट्री है हिंद, हिंदुस्तान, जिसको मोहम्मद ने भी कहा था फतेह करना है, ठीक है, गजवा हिंद करना है, ये कब से है यहाँ पे अंदाजन, हिस्टोरिकली? अंदाजन हिस्टोरिकली आप मतलब 1000 साल पीछे चले जाओ, ठीक है, 1200, जो जब मुगल एम्पायर यहाँ पे आए, तो हमें तो उस टाइम पे मिलती है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा उससे पहले हिंदुस्तान नहीं मतलब था यहाँ पे। मुगल एम्पायर, दोस्तों, मुगल एम्पायर हिंदुस्तान पे अटैक करने नहीं आए थे, वो किसी और कंट्री पे अटैक करने आए थे। मुगल एम्पायर आए तो पता लगा इस कंट्री का नाम हिंदुस्तान है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, तब एक कंट्री नहीं थी, तब ये अलग अलग प्रांतों में बंटा हुआ था। सर, मैं पूछ रहा हूं, ये जो कंट्री है, जो जो लैंड है, इसमें कितने अरसे से ये लोग थे? ये लैंड कितने अरसे से था? सॉरी, ये क्योंकि मोहम्मद 1400 साल पहले सपोजिटली मोहम्मद ने कहा था हिंद पे हमला करो। अगर 1200 साल पहले मुगल आए हैं, तो मोहम्मद को ख्वाब में आ गया था कि हिंद कोई इलाका है जिसपे हमला करना है। मेरा कहने का मतलब, आप मतलब 1200 पीछे जा सकते हो, 1400 पीछे जा सकते हो, लेकिन ये शुरू से नहीं है। तो अच्छा, आप शुरू से नहीं मुद्दे है? की बात बताइए। देखो, मेरी बात सुनो एडम ओके जी, भाई, शुरू से नहीं है। जैसे लो जी दोस्तों, 1400 साल पहले मोहम्मद ने कहा था हिंद पे अटैक करना है। उस वक्त हिंद नहीं था, लेकिन मोहम्मद को पता था कि हिंद पे अटैक करना है। यार, अगर हाँ, मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि हिंद पे अटैक करना है, और उसको पता नहीं था कि यहाँ पे हिंद कोई कंट्री है, तो फिर उसको कैसे पता लगा कि मैंने हिंद पे अटैक करना? एडम भाई, मेरा ये कहने का मतलब कि जैसे हिंदुस्तान, इसका नाम समय के हिसाब से आया, उससे पहले भारत था। जब रामायण के युग में है ना, उसके टाइम भारत नाम था, भारतवर्ष। मेरा कहने का मतलब कि समय के हिसाब से इसका नाम बदलता आया है। तो जब सिंधु लोग यहाँ आके, भारत कब से था? जब उस भारतवर्ष, जब श्री राम जी थे। और श्री राम जी कब से थे? तकरीबन आज से 5000 साल पहले। ओके, शुक्र है या खुदाया, तेरा ही आसरा ही जवाब मिल गया। आय हाय हाय हाय। मैं जनाब 2 रकत हुले मैं 2 रकत नफल दे अदा करना। यार रुको यार, पहले मैं 2 रकत नफल पढ़ ला। 10 मिनट से बाद मुझे जवाब मिल गया है कि ये कंट्री कब से है। लो, ये 2 रकत नफल, 2 रकत नमाज नफल बराए शुक्राना
For Sikhism, AOR Khalistani. Allahu Akbar. अच्छा, सुभानक आपने अल्लाहुम्मा मुझे व खालिस बिहम्दिका तबारक देखिए अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश देखिए शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं 2 रकत पूरी पढ़ ला? अच्छा मुझे शुक्र है मैंने रुको रुको, मेरी शुक्र है बात मुझे तो सुन जवाब लो मिल गया। आपको। अच्छा सर बात सुने, रुके अच्छा, रिलैक्स। आपको ही जवाब चाहिए, चलो आप ही बोल दो। सर जब तक मुझे आपकी आइडियोलॉजी समझ नहीं आएगी, मैं आपसे सवाल कैसे तो करूंगा? मैं क्योंकि आपने अपने आप को सर मैं छुपाया। आइडियोलॉजी मैंने आपने अपने आप आइडियोलॉजी को छुपाया। बताऊंगा तो आपको, देखिए सर हाँ। मैं आइडियोलॉजी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी सर पूरी मैं आपको बिल्कुल ओवरऑल की। टाइम दूंगा ना। अभी सब्र तो कर लेना। अच्छा मैं आपको टाइम ठीक है दूंगा। ठीक है अभी अभी मेरे सवालों के ठीक है सीधे से ठीक। जवाब देते। अगर आप मेरे सवालों के सीधे से जवाब देते तो 2 मिनट में मेरे सवाल जवाब खत्म हो जाते। आप नहीं दे रहे थे, इसलिए चलो जो है ना ठीक है 15 मिनट लग बताइए। गए। ओके। ओके जी, पहली बात ये हो गई कि भारत नाम की ये कंट्री जो है, ये कोई 5,000 साल से है, करेक्ट? जिसके नाम चेंज होते रहे, करेक्ट? आप कंट्री, हाँ आप कंट्री बता दो। ये भारतवर्ष प्रांत थे अलग अलग, कहने का मतलब कि आप वो मान सकते हो कि भारत 5000 साल पहले था। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, उसके ऊपर अटैक होते रहे हैं मुख्तलिफ टाइमों में, करेक्ट? हाँ होते रहे हैं। कोई 12 कुछ साल पहले आ गए जनाब मुसलमान लोग, उन्होंने इस पे अटैक कर दिया, हाँ करेक्ट? हाँ हाँ। हम्म। उनके कोई 8 कुछ साल बाद अंग्रेजों ने अटैक कर दिया, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। नहीं 800 साल बाद नहीं, थोड़ा लेट, उससे भी लेट था। मतलब ये तो अंग्रेज 1800 सतावन से पहले आए हैं, मतलब 1800 सदी में। उससे पहले मुगल एम्पायर ही 1800। रहा है। हाँ जी, तो सर असल में वो 800 साल बाद आए थे ट्रेडिंग के बहाने। साल हाँ 2 साल 800 साल, साल 200 साल, मैंने दो मैंने सौ साल समझा आज ट्रेडिंग से करते 800 रहे। साल पहले। नहीं हाँ भाई हाँ साहब, हाँ 1200 साल पहले मुगल आए, उसके 800 साल बाद अंग्रेज इसके अंदर घुसना शुरू हो गए, और फिर अंग्रेजों ने हाँ अटैक किया, और तकरीबन 200 साल वो एक तरह के काबिज रहे, करेक्ट? हाँ। उसमें उसमें 100 साल, मतलब जैसे जो पंजाब है वो 100 साल रहा, हिंदुस्तान वो 200 साल रहा अच्छा। गुलाम। ओके। ओके, बेहतरीन हो गया। अच्छा मुझे अब एक ये बात बताएं कि 1947 में जो ये 2 कंट्रियां बना के गए अंग्रेज, आपके मुताबिक ये हम्म। सही करके गए? नहीं मुझे, मेरे हिसाब से बहुत गलत करके गए हैं। नहीं यार, सही करके गए हैं यार ये। क्यों? अंग्रेजों ने बिल्कुल सही किया है यार। असल में कोई भी जो लोग होते हैं, वो जब तक उनकी कंट्री ना हो, उनका पता नहीं लगता है, उनको आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, उनको सारा साइंस आ, नहीं मिलती है। तो बड़ा सही किया उन्होंने, इंडिया तो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। आप हाँ आपके हिसाब से सही किया होगा। मेरे हिसाब से सही किया। नहीं आपको वही तो बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से गलत किया, तो आप बोल रहे हो कि तो आपके हिसाब से सही किया होगा। अच्छा, अभी 10 मिनट पहले आप बता रहे हम्म। थे यही स्टेटमेंट। हाँ हाँ। अभी 10 मिनट पहले जरा वो स्टेटमेंट दोबारा बोले ना, कि खालिस्तान को एडम सपोर्ट करने भाई, के लिए आपने स्टेटमेंट क्या हाँ दिया था अभी थोड़ी देर पहले? अभी 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 हाँ थोड़ी देर अभी पहले आपने अभी स्टेटमेंट क्या दिया था? देखिए इजराइल का एडम एग्जांपल भाई। देखो। अपना हाँ देखिए, अमित साहब जरा वीडियो में इनका स्टेटमेंट निकालिए, जरा दोबारा से प्ले करते हैं कि इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, ताकि जरा हाँ पता हाँ, लगे इन्होंने निकालिए। खालिस्तान बनने के लिए स्टेटमेंट क्या दिया था अभी थोड़ी देर पहले। इजराइल बनने का मुझे मुझे एग्जांपल दे रहे थे। एग्जाम्पल देके जो जरा यूट्यूब पे लगा के जरा ऐड करें ना, जरा इनकी स्टेटमेंट भी दिखाएं कि जी इन्होंने कहा था कि जब तक वो ये ना हो वो ना हो, ये सेम चीज तो। अच्छा, पाकिस्तान बना तो गलत बना, राइट? हाँ अगर पाकिस्तान बना तो हर एक कम्युनिटी को अपनी आवाज उठाने का हक है। ओके, देखिए पाकिस्तान एडम बना तो भाई, गलत बना ना। अभी अब एक मिनट अभी तक आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं जब भी आप देता मेरे हूँ। को, हाँ लेकिन अभी आप ये अब दो, क्लियर हो गया कि पाकिस्तान बना तो गलत बना, राइट? 1947 में। हाँ मतलब ओके। हिंदुस्तान के, जब आप मतलब जो इधर से नहीं लोग वो देश बना गए, समझो बात को, जो इधर हिंदुस्तान के उनका रहबर जहाँ वो उनके गुरुजन इधर नहीं, मतलब वो अरब से आए थे ना। सर
इंडिया जो है एक सेकंड जी, इंडिया, एक सेकंड यार जरा इनके साथ भी वही करना पड़ेगा जो साहिल करता था, बड़ा जरूरी है ताकि हम अरे समझ लें भाई, इनकी बात। एडम भाई, एक बात बोल दूं, मैं आपको इंडिया 5 साल इज से सुन रहा फिर। is 5,000 years old. Okay, now 1200 years ago, Muslims came into India. 800 years later, uh, English people came from England. 200 years they ruled almost. हम्म, And then 1947, India was divided into two. यार क्या हो गया? Divided, divided into two based on ideology. AOR said it is a wrong division. Okay. All right, sir. यहां तक तो हम आ गए, ठीक है? अच्छा, यहां तक हम पहुंच चुके हैं आपके साथ। हम्म, यहाँ पे मैंने यहाँ तक कोई गलत बात लिखी है? नहीं, आपने सही लिखी। ओके, उसमें ये है कि ऑलमोस्ट आपने लिखा 2000 ईयर रूल्ड, जिस 200, सॉरी 200, उसमें 100 साल पंजाब था, पंजाब गुलाम यार नहीं भाई हुआ। बात सुनो, यार बात सुनो। पंजाब इज पार्ट ऑफ इंडिया, सेपरेट है इंडिया से। इंडिया से, देखो पंजाब भाई, सेपरेट है इंडिया से, चलो सिंपल आप सवाल है। मान लो कि इसके इसके साथ था, दोबारा से आप पूछता मान हूँ, लो इसके साथ पंजाब था, सेपरेट लेकिन है इंडिया से, हाँ या ना? लेकिन लेकिन पंजाब की जंगें हिंदुस्तान से भी होती रही हैं, जिधर जंग और हिंद भाई पंजाब और दा भाई होगा। और भाई सिंपल सवाल है कि पंजाब इंडिया का पार्ट था उस वक्त के नहीं? हाँ, पार्ट था, ओके, मतलब ये अगर हिंदुस्तान अंग्रेजों ने हमारा ही है। अगर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया हुआ है तो दिल्ली में वो थे, दिल्ली दिल्ली जो है वो इंडिया का पार्ट है हाँ, या इंडिया सेपरेट है? दिल्ली दिल्ली इंडिया का पार्ट है। दिल्ली किस जगह पे, इंडिया के किस रीजन में है? इंडिया दिल्ली के, अपना वो अपना स्टेट हरियाणा है। के पास है दिल्ली, ओके, हरियाणा के हरियाणा पास के है, बॉर्डर ये पे। सेंटर था हाँ ना? हाँ, सेंटर, हाँ सेंटर था। सेंटर था। ओके, हाँ चलो, हाँ। तो अच्छा, जिसने दिल्ली पे कब्जा किया हुआ है वो उसको क्या कहा जाता था? जिसने दिल्ली पर कब्जा किया, उसने भी पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, यही कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? नहीं, ये ओके, नहीं कहा जाता एडम था भाई, ये। आप मेरी बात सुनना। आप बात को पीछे से लेकर आगे जैसे लेके आ रहे हो ना, जो हम्म, सिखिज्म है, ये जब जब बाबर आया यहाँ पे, उसने मतलब अटैक किया, तब सिखिज्म नहीं था, ठीक है ना। ओके, जैसे सिखिज्म डेवलपमेंट हुआ ना, उसने अपना हम्म, वजूद ऐसे नहीं कि वो हवा में ही एक प्रचार से मतलब डेवलपमेंट हो गया, उसके लिए कुर्बानियां हुई हैं, ठीक है हम्म, ना। कुर्बानियां बहुत ब्रूटल तरीके से हुई हैं। आप हम्म, अगर ऐतिहासिक हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें एक वजूद, जैसे औरंगजेब के साथ गुरु तेग बहादुर जी का, मतलब कुछ जैसे हिंदू बोलते हैं ना कि सिख एक पार्ट था, मतलब हिंदुइज्म का, कि ये हिंदुइज्म ही है। तो गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब से जब बात हुई, औरंगजेब ने बोला कि यहाँ मुस्लिम है और हिंदू है, मैं दोनों में एक करूंगा, ठीक है ना। तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोला, तू दो करेगा, मैं तीसरा पैदा करूंगा। जो तीसरा ओके, पैदा होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जैसे हिंदू हैं वो छिप जाते हैं, मुस्लिम हैं वो बाल कटा के छिप जाते हैं, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे डेवलप हुआ है ये, ऐसे नहीं कि इसके लिए कुर्बानियां हुई हैं, समझे ना आप। जी जी, मैं लिखता जा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो जो आपने बोला ना, भारतवर्ष जैसे श्री राम जी हुए हैं, श्री राम जी हुए हैं तब ये एक देश था, मैं आपकी बात मानना,
ठीक है ना, हम्म, भारतवर्ष अखंड भारत था, जैसे हम्म, जैसे वे बंटा बटा, लेकिन जो हाँ, सिख हिस्ट्री है वो मुस्लिम हिस्ट्री जैसी नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे सिख हिस्ट्री इसी देश हम्म, के अंदर है, हम्म, जैसे मुस्लिम है वो बाहर से आए, हम्म, सिख गुरु साहिबान इसी देश के अंदर हुए, हम्म, लेकिन उन्होंने एक खंडे की तार से, मतलब आप जैसे बैसाखी आपने सुनी होगी, उस पे उन्होंने प्रण कर दिया कि एक ऐसा पंथ, एक ऐसा धर्म चलेगा जिसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका आप एक मतलब आइडेंटिटी होगी, उसके लिए कुर्बानियां हुई हैं। हर ओके, कोई यार कर्म से धर्म बात में होता है, ये बात ये क्लियर ना हुई। कि यार रुको। अमित, जन्म से नहीं होता। अमित रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, हाँ एक जी, सेकंड खाली, एडम सर रुको का ये। ओके, हकूक से पहले बाद में पहले मैं जरा बात कर लूं। हकूक वरना टॉपिक चेंज कर देगी, जो मेरा मेरा फ्लो है खराब होगा। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आपने अपनी सारी बात रख ली, मुझे हिस्ट्री बता दी जो हम्म हिस्ट्री का मेरे को पता था ऑलरेडी, और सारी दुनिया को भी पता है, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने जो इतनी ढेर सारी बातें की हैं, उन ढेर सारी बातों में एक बात ये है कि सिखिज्म जो है वो 500 साल पहले बना, बाबर आजम के बाद, हाँ करेक्ट? हम्म। और ये पार्ट है सनातनिज्म का, करेक्ट? नो नो नो, ये इसका आपने भी बोला, सिखिज्म अभी आपने बोला। नहीं 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 नहीं, यही यही बात होती है, मेरी बात सुनना, इसी एक से एक सेकंड, कंफ्लिक्ट पैदा होता है। एक मैं सेकंड, आपको एक बताता हूँ सेकंड। कैसे सिख पाठ नहीं है। सिख सिख जो है वो पहले मैं सनातनी थे कि स्टेटमेंट नहीं? अपनी क्लियर कर दूं, स्टेटमेंट क्लियर कर दूं कि सिखिज्म क्या है। सिखिज्म, जो सिखिज्म में बोला जाता है, सिखिज्म में सारे धर्म है, अकेला सनातन नहीं है, ये अच्छा, सबके लिए खुला इस्लाम भी है, इस्लाम भी है इसके अंदर? है। आप किसी से भी नहीं, इस्लाम, आप इस्लाम जो डिफाइन करते हैं वो नहीं है, जो जैसे मैं आपको रेफरेंसेस दे एक देता सेकंड, हूँ। कौन सा इस्लाम है जैसे फिर? सिखिज्म में आप देखो, मतलब उसमें आता है अकेला सनातन, मेरा कहने का मतलब ये सभी को जोड़ के बना है, अरे जैसे भाई मैं, क्रिश्चियनिटी एक सेकंड भाई, सारी ओके, मानवता के एक सेकंड, लिए कौन कौन सा क्रिश्चियन है सिखिज्म में? है। कौन सा क्रिश्चियन जो है सिखिज्म में? सिखिज्म में, सिखिज्म भाई आप जैसे जैसे ना, जो भी मानवता के लिए है ना, जैसे आप देखो कि सिखिज्म में ओ आप भाई, ओ भाई, ये ओ भाई, ओ भाई, एक सेकंड, तेरी मेहरबानी। हम्म। अब जलेबी ना बना मुसलमानों की तरह, मुझे बता। भाई इस्लाम देख, सुन सुन सुन, देखो हम्म, मुझे जो बताओ थे ना उस तुम्हारे, टाइम, जो थे ओ उन भाई, सबको और लेके लेके रिलैक्स, ओ भाई, सवाल तो आने दो, फिर जवाब दोगे कि सवाल के बगैर ही जवाब दे दोगे? तुम्हारे सिखों में नाम होता है कृष्णा, होता है? नहीं तुम्हारे अकेला एक गुरु के कृष्ण। बेटे का नाम, तुम्हारे एक गुरु के एक बेटे का नाम कृष्ण था? हर कृष्ण जी। थैंक यू सो वेरी मच। हर राम जी भी था। हाँ। आपके किसी गुरु के बेटे का नाम हर अब्दुल्ला है, या कोर अब्दुल्ला है, नहीं अब्दुल्ला कोर है? नहीं, इसमें ये गुरु का नहीं है, लेकिन जैसे पीर हैं, ओके, पीर, भाई मतलब मैंने ये पीरों की बात, सबको। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, मैंने पीरों की बात की है, गुरुओं की बात करते हैं ना। भाई देखो, इस्लाम जब सुनो भाई, जो आप, ओ जो भाई ये एक बात, मिनट, जो एक आप, सेकंड, जो भाई आप जो मैं बात कर रहे हो बेस उसी पे बात कर रहा हूं चलेंगे। उसको समझ के बात करो यार, इससे आगे नहीं चलो यार। ठीक है, उसके ठीक है, आगे नहीं चलेंगे, जो आप। पहले पहले मैं गुरुओं की बात कर रहा हूँ, गुरुओं की बात कर ले, जिनसे आपने सिखिज्म हाँ सीखा। कर ओके, लो कर लो। जो गुरुओं ने अपने सारे नाम कहां से रखे हुए हैं? सनातनी नाम उठाए हुए हैं ना? किसी ने इस्लामी नाम उठाया? बताएं मुझे, किसी नहीं गुरु ने इसलिए, इस्लामी नाम उठाया? लेकिन देखिए, गुरु साहब का यार जो मैं, नाम यार है फिर देखिए यार, मेरा एक सिंपल सवाल है, किसी ने मोहम्मद कौर नाम रखा है किसी गुरु के, गुरु ने? मोहम्मद कौर, अब्दुल्ला कौर, अब्दुल्ला सिंह, मोहम्मद सिंह, किसी गुरु ने ऐसा नाम रखा है? नहीं नहीं रखा नहीं है। नहीं, आप कहना क्या शुक्र चाहते है हो यार कि खुदाया, तेरा ही गु- आसरा ही शुक्र है। तो अच्छा, ओ तो ये भाई तमाम देखो, तमाम तुम्हारे तमाम सिखों ने, सिख गुरुओं ने सारे के सारे नाम वो क्यों उठाए हैं? सवाल है सिंपल, वो वाले सारे नाम क्यों उठाए हम्म, हैं जो कि सनातन धर्म में बड़े ही तमीज और इज्जत वाले नाम है, बकौल सनातनियों के? मुसलमान चाहे उन कैसे, नामों को गालियां कैसे देते रहे, कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं बात कर रहा देखो, हूं बकौल सनातनियों के। हाँ हाँ, देखिए एडम भाई, जो जैसे गुरु साहिब हैं, मतलब ये सनातन अकेले के नाम नहीं उठाए, मैं ये कहने का मतलब, उनका नाम, आपकी बात सही है,
कि वो जैसे उनका जो नाम था वो आप ये कहना हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, समझ रहे हो ना आप? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि भाई मैं आपका ये आपको कहना कि बता दें, मुझे बता दें आपके गुरुओं में से किसी का नाम इस्लामी नाम हो, प्लीज बताएं जरा एक आधा। नहीं, इस यहाँ बात इस्लाम और हिंदुइज्म की नहीं है, मैं ये भाई अभी बोल रहा आप हूँ। ऐसे भाई, मिस्टर एवार लिसन, हम्म, मेरे सीधी बात का सीधा जवाब, नो बकवास प्लीज। मैं सारा 4 घंटे आपके साथ जाया नहीं कर सकता हूँ, मेरा एक टॉपिक चल रहा था, लेकिन स्टिल मैंने आपसे बात की क्योंकि आप जो है मेरे साथ कमेंट्स में थे, आप जो है कह रहे थे कि आप बड़े पुराने मेरे व्यूअर हैं। आपको मेरी बात का पता होगा कि जो मुसलमान भी मेरे साथ यहाँ पे आके जलेबी लंबी बनाता है, मैं क्या करता हूँ उसके साथ, बताइए प्लीज, बताइए, आपको पता है, आप मुझे नहीं, सुन रहे हैं 2-3 सालों वो से, तो करेक्ट? वो तो मैंने आपकी केरला स्टोव वो सारी स्ट्रीम में देखता हूँ, ओके, ए टू तो जेड देखी। मैं तो फिर मुझे सिंपल ये बात बताएं, अगर मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूं और मैं उसका सीधा जवाब लेता हूं, नो बकवास, राइट? अब मैं आपसे हम्म। सीधा सवाल कर रहा हूं कि आपके किसी गुरुओं का, उनके बच्चों का, किसी का भी कोई इस्लामी नाम है? इसका जवाब होता है हाँ हम्म, है, ये पकड़े हमारे गुरु गोविंदर कौर साहब के बेटे का नाम है मोहम्मद सिंह, या नहीं है? इसका और कोई जवाब नहीं। नहीं, लेकिन नहीं है, चलो आप इसके आगे चलो, नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच, ओके, थैंक यू, आई हाँ, अप्रिशिएट लेकिन इट। ये बात अच्छा, अब आपकी दूसरे जैसे भाई, सॉरी एक सॉरी सेकंड में, ये थोड़ा सा आगे नहीं चले ना, आगे नहीं चले, अभी पहले मुझे चलो बात चलो, कंप्लीट करने दें, बात कंप्लीट करने दें। ठीक है। आपके किसी सिख गुरु का नाम है जॉन सिंह, पॉल सिंह, नहीं है नहीं किसी का? नहीं है, नहीं 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 है, ओके ओके ओके। यानी कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपके जितने भी सिख गुरुज हैं, उनके नाम हम्म। सिर्फ और सिर्फ सनातनी लोगों के मुअज़्ज़ज़ नामों में से नाम ही हैं, करेक्ट? चलो ठीक है, हाँ हाँ, नहीं चलो सही ठीक है, बात। नहीं, आप या तो है या नहीं है। चलो अरे ठीक है, कुछ भाई नहीं होता, चलो बीच की आप, सर, बीच की चीज नहीं ठीक है। है, या मैं तो है, नहीं जो या तो देखो, या तो जिस ट्रैक हिस्टोरिकली है या नहीं है। एडम भाई जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो ना, लेकिन सिख धर्म के सिद्धांत वैसे नहीं है, फिर मैंने पूछा आपसे कुछ, समझो। मैंने पूछा, मैंने आपसे पूछा। चलो ठीक है, चलो आप बताओ। हाँ ठीक है। ओके, नहीं है। अच्छा, अगर नहीं हम्म है तो इसका मतलब है सिखिज्म कहां से चल रहा है, किस आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है टू बिगिन विद? अब मैं बताऊं। मैंने पूछा कि सिखिज्म फिर किस आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है फिर? अगर सारे ये हाँ नाम हाँ आप लोग आइडियोलॉजी क्या है आपकी? हिंदू हिंदू आइडियोलॉजी के नामों को लेके चल रहे हैं, अगर आप लोग सारे के सारे आपके नाम हम्म। हिंदुओं के हैं, तो भाई साहब फिर सिखिज्म की बेस आइडियोलॉजी क्या है? बेस बेस आइडियोलॉजी है कि जैसे गोल्डन टेम्पल है, दरबार साहिब है, जिसको आप स्वर्ण मंदिर भी बोल देते हो, जो आप जैसे आपके साहब उसको सनातन से रिलेटेड करोगे, उसके 4 दरवाजे हैं, समझ रहे हो ना? बेसिक में ये सभी हाय धर्मों को या लेके खुदाया, चलता है। तेरा ही आसरा ही मैनू ना ओ याद तेन भाई ਮੈਨੂੰ आप ना ਚੁੱਕ ਲੈ आप ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ बात ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। देखो ओ भाई एक मिनट ਗੱਲ चलो। सुनो, ओए गल सुन, गल हाँ सुन, हाँ गल सुन, हाँ, गल सुन। हम्म एवरीवन इज वेलकम कि वो आ जाए और आके सुने हम क्या सुना रहे हैं, दैट इज एवरीवेयर। आप आज क्रिश्चियन चर्च में जाना चाहो, आपको दुनिया के किसी क्रिश्चियन चर्च में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका लेकिन उनके लेकिन ग्रंथ में चलो सुनो, चलो भाई आप सो अगर हम्म गोल्डन टेम्पल के 4 दरवाजे हैं, इट डजंट मीन्स एनीथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडियोलॉजी हम्म पीछे क्या है और वो किसको लेके चल रही है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर अगर आप जो होते, आपके जो मेन गुरु हैं, उनके कितने बच्चे थे? क्या नाम है यार हकूक, वो मेन गुरु का नाम बताएं जरा प्लीज, जी गुरु श्री मुझे गोविंद गुरु नाम सिंह जी। गोविंद मुझे सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, हाँ, नहीं वो उनके मेन नहीं कितने थे, बच्चे? वो मेन, मेरी और बात यार सुनना, वो ठीक है, और अकेले जिसको तू मेन मेन कहता है उसी वही मेन है, उसके बच्चे कितने थे? आपके जितने भी मेन गुरुज हैं गुरु उनके बच्चे कितने थे चार टोटल? चार 4 बच्चे थे, चार चार 4 बच्चे थे। हम्म। अच्छा जी, चारों बच्चों के नाम बताइए कौन कौन से हैं? जोरावर सिंह, फतेह सिंह,
बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। ओके, ये 4 बच्चे, करेक्ट? आपके मुताबिक ये मेन गुरु है कि नहीं है? मेन गुरु है। मेन गुरु है, ओके। इन्होंने 4 बच्चे में रखे अपने, ठीक है? इनमें से अगर तो ये चारों आइडियोलॉजीज को लेके चलते तो इनके एक बच्चे का नाम होता मोहम्मद सिंह, दूसरे बच्चे का नाम होता पॉल सिंह, हजरत पॉल सिंह, तीसरे बच्चे का नाम होता कृष्णा सिंह, और चौथे बच्चे का नाम होता कोई और वाला सिंह, मुझे अब यार चौथा धर्म दे यार कोई, अमित, जैन सिंह। इनका ठीक है, सिखिज्म का कोई नाम पकड़ लीजिए ना। हाँ, जैन सिंह, ओके। अब बात यह है कि आपके बाबा जी ने तो किसी भी और धर्म के बच्चों के नाम नहीं रखे, क्यों? नहीं, जैसे फतेह सिंह सनातन का थोड़ा है। मेरा ये भाई ये कहने तो का जेनेरिक है मतलब, ना। फतेह, फतेह किसे कहते हैं? फतेह जीत। जीत, थैंक यू सो वेरी मच। तो जेनेरिक नाम लिया ना, इसका किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, करेक्ट? थैंक यू, इससे जेनेरिक नेम। तो आप ये नाम जो है फतेह, ये किसी इज्म से ताल्लुक नहीं रखता, करेक्ट? ओके, नाउ किसी प्लीज, रिलीजन से नहीं रखता। थैंक यू। सो नाउ प्लीज टेल मी, किसी मुसलमान का नाम क्यों नहीं रखा आपके गुरुओं ने? नहीं, क्योंकि देखिए, मतलब मुस्लिम का, मैं आपको सिख फिलोसफी, सिख आइडेंटिटी के बारे में बता रहा हूँ। मुसलमानों के बारे में आप तो आपसे मैंने बहुत सुना। मैंने आपसे आइडियोलॉजी पूछी है सिखों की क्या है? इज दैट माय क्वेश्चन? तो आप ये मैंने बात कर आपको रहे ये हैं ना, ये बताया है, सनातन का। मैंने क्योंकि आप लोगों ने सनातनी नाम क्यों रखे हैं आपके गुरुओं ने अपने बच्चों के? कृष्ण सिंह क्यों है, राम सिंह क्यों है? नहीं एडम भाई, जब ना कोई भी एक मिशन चलता है ना, उसमें धीरे धीरे बदलाव आता है। इसके लिए तो यानी कि 200 साल चले। आपके गुरुओं ने हिंदुओं को बेवकूफ बनाया कि उनके उनके नहीं, गुरुओं के नाम हिंदुओं ने हिंदुओं रखे, को उन्होंने अपने बच्चों के रखे ताकि हिंदू समझे कि हम उन्हीं में से निकले हैं, लेकिन असल में आप लोग उनमें से नहीं निकले थे। ये एक डिसीविंग का नहीं, टैक्टिक था, आप देखिए, ये कह रहे हैं? उनमें से निकले थे, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म से कोई तो लेना भाई मैं देना यही नहीं है। पूछ रहा जब हूं, एक उसमें से सेकंड, मैं यही पूछ रहा हूं, यानी कि आपके गुरुओं ने बेवकूफ बनाया हिंदुओं को अपने बच्चों के नाम उनके भगवानों के नाम पे रख के, ताकि हिंदू ये समझे कि हम उन्हीं में से हैं, लेकिन असल में से आप उनमें से नहीं थे। नहीं, ये बात मैंने कब बोल दी? तो फिर मेरा सवाल वहीं पे आ जाता दोबारा कि आपके हाँ, गुरुओं ने अपने बच्चों के नाम हिंदू भगवानों पे क्यों रखे? अब आप मेरी हिंदू भगवानों पे, जैसे अब देखो, श्री कृष्ण जी है, उनको हम भी मानते हैं, ठीक अच्छा, आप है। मानते हैं उनको, अब श्री कृष्ण जी को मानते हैं? क्या मानते मैं हैं आप श्री उनको? राम जी को भी मानते हूँ, भगवान ओके जी, मानता हूँ। ओके जी, ये अब सिख साहब जो मेरा है ना, कहने का मतलब, नहीं श्री नहीं, कृष्ण हाँ बोलिए। अरे आप एडम भाई मुझे गलत समझ रहे एंड हो। जो राम आइडियोलॉजी, एंड, और तीसरा नाम कौन सा लिया? श्री राम जी। तीसरा कृष्ण, राम, और तीसरा एक और नाम लिया था आपने? नहीं, श्री कृष्ण जी और श्री राम जी का ही नाम लिया है। ओके, आप जैसे को उसको भी मान लो, उनको क्या भगवान नाम है क्या? मानते हैं, ओके। हाँ, आप श्री कृष्ण जी को और श्री राम जी को भगवान मानते हैं, राइट? मानता हूँ, इसमें क्या बेहतरीन शक हो है? गया, बेहतरीन हो गया। ओके, बेहतरीन हो गया। हम्म। अच्छा, अल्लाह को भी भगवान मानते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में आया है, क्या अव्वल अल्लाह अल्लाह भगवान है? नूर पाया। हाँ, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। मतलब मैंने पूछा यही मैं क्या? आपको बता रहा हूँ, ये हजरत सबको साथ में लेके चलता है सिखिज्म। मिस्टर ए आर, मेरा सवाल क्या है? आप अल्लाह को भगवान हम्म। मानते हैं, श्री कृष्ण और श्री राम के साथ रखते हैं? यहाँ पे मैं अल्लाह लिख दूं, कोमा अल्लाह? हाँ, मतलब इसमें नहीं, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ, सिखिज्म में एक ओंकार, मैं ये भाई मानता हूँ। जो मैं बोल रहा, आपकी बात पे ही आऊंगा भाई। यार भाई, मेरा सवाल यार सिंपल है। देखो भाई, आप मेरी श्री बात, अल्लाह को भी भगवान हाँ मानते हैं, हाँ या ना यार? हाँ, मानता हूँ। ओके, तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ श्री कृष्ण, श्री राम, श्री अल्लाह को आप भगवान मानते हैं? ये लाइन सही है मैंने जो लिखी है? एक, मतलब यूनिवर्स एक है, एक ओंकार, ठीक है ना। उसके हिसाब से समय समय के हिसाब से बंदे भेजता है और वो भाई धरती मैं पे। पूछ रहा उसको हूं, आप, मेरी ये बात सुनो, उसको आप मेरी ये एक लाइन शख्स, सही है
जो मैंने लिखी है, श्री क्या? कृष्ण, श्री राम, श्री अल्लाह को आप भगवान मानते हैं? हाँ, भगवान मानता हूँ, जैसे एक शक्ति मानता हूँ, एक ओंकार। ओके यार, देखो बात सुनो यार, जब मैं सिंपल सवाल कर रहा होता हूँ आपका जवाब फिर क्यों मैं चौथी दफा दोबारा पूछने लगा हूँ? ये जो वो मैंने लाइन भाई लिखी है इसी वजह से आप सिखिज्म को जानते नहीं हो। भाई, मैंने तो मैं मुझे इस मुझे जवाब दोगे तो पता लगेगा ना। मैं जो लाइन लिखी हाँ, है सही लिखी है कि नहीं लिखी स्क्रीन पे? श्री कृष्ण, श्री राम, श्री अल्लाह सब एक एक लेवल के ऊपर है, आप इन तीनों को भगवान मानते हैं? एक एक शक्ति है, हाँ, अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, अकॉर्डिंग टू अच्छा, सिखिज्म। सिखिज्म को छोड़े, आप मानते हैं ना अल्लाह को भी भगवान? हाँ हाँ, सिख गुरु ग्रंथ ओके, साहब में है। नाउ बेहतरीन बेहतरीन, अब आप अल्लाह को भी भगवान मानते हैं। ओके, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि सिखों को आइडेंटिटी के लिए कंट्री चाहिए, हाँ, आपने भी बोला था। आइडेंटिटी के लिए कंट्री चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब ओके इसके पीछे भाई एक हिस्ट्री है। ओह देखो यार रुको आप, यार, बात सुनो, मैंने हिस्ट्री पूछी, आपने बोला वो जो बोला वो लिखा है। भाई ओके, आप ही जो कुछ पूछ रहे हो मुझे तो कुछ बोलने नहीं दे रहे। मैं अभी तो बोल रहे हो, और ठीक है क्या ना, बोल रहे हो, इतना जैसे लंबा, जैसे आप क्योंकि पूछ रहे हो, एक मिनट। आप जब बोलते हो ना सर, तो आप बोलते हो हम्म, फजूल वाला जिसकी कोई वुकत नहीं है हमारी इस डिस्कशन में। वो मुझे आपके 36 चीजें हिसाब नहीं से है, चाहिए। हाँ, तो वो मुझे मुझे आपके मेरी जो हिसाब। इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे। ओके, सो आपको हम्म, आइडेंटिटी के लिए कंट्री चाहिए, ये कंट्री कहां से कहां तक होनी चाहिए? नहीं, इसमें भी आप मुझे पहले ये तो एक्सप्लेन करने देते कि आप किस हिसाब से इसको पूरा तो एक्सप्लेन करने देते। मुझे 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 चाहिए ही नहीं मुझे किस हिसाब से, मैं पूछना चाह रहा हूँ बाउंड्री ऑफ द कंट्री क्या होनी चाहिए आपके लिए? बाउंड्री ऑफ कंट्री, देखिए, अब आपको मैं बताऊं कि जैसे खालिस्तान है, खालिस्तान जब 1947 में हम पॉपुलेशन की वजह से मारे गए, ठीक है ना, 90 बैक स्टेज, अब मैं इसको बैक स्टेज किया क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने इससे क्या सवाल किया और ये जवाब क्या दे रहा है, ये इसमें और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। मैं संगा जी को कई दफा बोला था कि यार आप लोग बात करो इन लोगों से सबसे। संगा साहब कहते हैं मुझे कि यार ये लोग इस्लामिक बोंगियां ही मार रहे हैं। मेरा सवाल है भाई, कंट्री की बाउंड्री क्या होगी बकौल आपके? 47 में हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ क्योंकि हम लोग तादाद में इतने ज्यादा नहीं थे। भाई ये सवाल है, ये सवाल है भाई, बाउंड्री ऑफ द कंट्री क्या होगी वो बता दो प्लीज भाई, बाउंड्री ऑफ द कंट्री बता दो बराए मेहरबानी। कंट्री, बाउंड्री ऑफ कंट्री, जहां तक जिसका मतलब चलता है वो चलाता है, जिसका मतलब क्या जैसे मतलब अब पाकिस्तान मैं एक सोटी लेके चलूं और जमीन के ऊपर लाइन लगाना शुरू कर दूं और जहां तक वो लाइन लग ना गई ना वो मेरी ना, कंट्री होगी? भाई ये मुझे एडम भाई कंट्री हर, के मुझे देखो, बताओ कहां तक होगी, कहां से शुरू होगा, कहां तक होगा, क्या आपकी ये बेंच आइडियोलॉजी कहती है? आइडियोलॉजी नहीं, ये बेंचमार्क होता है। वैसे तो हमारा सारा हिंदुस्तान है, ओके मतलब ओके ओके, हिंदुस्तान हमारा है, भारत टोटल हमारा है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को नहीं नहीं नहीं, अ, आप देखिए, देखिए, को हाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं आप ये नहीं नहीं। मेरा कहने का, ओके, मेरी बात तो बाउंड्री ऑफ द सुनिए। कंट्री खालिस्तान क्या होगी? बाउंड्री ऑफ का कंट्री खालिस्तान, आप ये बेंचमार्क नहीं होता, ये जैसे भाई जैसे आपने पाकिस्तान एक खालिस्तान बनाना है, उसकी बाउंड्री क्या है भाई? नहीं, मैंने खालिस्तान नहीं बनाना, मैंने ओके, आपको ये बोला अब कि मैंने हक है पूछा है मुझे, खालिस्तान की बाउंड्री क्या होनी चाहिए हजरत? जहां तक हो सके, जैसे अब टोटल आप इस हिंदुस्तान, हिसाब से तो अगर आप इस हिसाब, हाँ, टोटल हिंदुस्तान, अगर, टोटल हिंदुस्तान। हाँ, हाँ, हिंदुस्तान का ओके जी, टोटल हिंदुओं के ना, हिंदुस्तान, आप सुन पूरा लो। हिंदुस्तान हिं- जी, पूरी बाउंड्री हाँ, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का हिंदुओं के नाम पर पूरा हिंदुस्तान को नाम दे दे खालिस्तान, दोनों मिलजुल के रहें, क्योंकि आइडियोलॉजी तो मुसलमान ले गए ना, तो हम तो हिंदू हेलो, इनके साथ ही आए ना। ओ भाई एक सेकेंड, हिंदुओं में कोई हम्म, अल्लाह को भगवान नहीं मानता, कोई उनके भाई किसी नहीं, में लिखा हुआ है अल्लाह मैं, भगवान है? हाँ, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। अच्छा, तो फिर आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, तो अब आप फर्क हो गए ना, आपने भी डिफाइन कर दिया कि आप हिंदुओं से नहीं, फर्क है, हमने ये आपने भी ये डिफाइन किया। धर्म सबको साथ में लेके चलता है। ओ भाई, भाई ओ भाई, सिखिज्म, मेरा मेरा जैसे एक देखो, भाई सेकेंड, करण भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी। ये अल्लाह वाली जो ये बात बोल रहे हैं बार बार, अव्वल एक अल्लाह सेकंड, नूर ओ पे यार रुको। नहीं यार, ये भाई अभी वो हकूक नहीं, हकूक अभी सूट नहीं, कर रहे हैं उसमें इस्लाम। हकूक अभी नहीं यार, हकूक अभी नहीं, अभी नहीं, हकूक अभी नहीं। रुको, संगा जी हकूक स्वागत है रुको। आपका, सब्र करो, संगा आ सब गया। रुको, सब रुको, हम्म,
चुप, मैं बड़ा अभी नहीं संगा जी, स्वागत है आपका, अभी रुक जाए, अभी आपने बोलना नहीं है, अभी आपने नहीं हाँ बोलना। नहीं बोल रहा ओके, हूँ। अरे अच्छा संगा जी, जी को लाइए आप, उनको क्योंकि एवार, हिस्ट्री मालूम है। मिस्टर एवार, एवार मैं आपको किक आउट कर दूंगा सर, पहले मुझे समझने की कोशिश कर लें प्लीज, जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद आप जिससे मर्जी बात करना। ओके, अभी आपने कहा बाउंड्री ऑफ द कंट्री खालिस्तान टोटल हिंदुस्तान होगा, करेक्ट? हाँ मैंने ये बोला कि इसी का नाम खालिस्तान रख दो, दोनों मिलजुल के ओके, रहो, क्योंकि हिंदुओं का। अच्छा पूरी पूरी कंट्री का नाम खालिस्तान रख दो, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी आपने कहा अरे कि अच्छा टोटल मेरी हिंदुस्तान, बात तो ओके अब मेरी पूरी एक तो सेकंड, सुन लो आप, मेरी नेम बात सुन लो। इट अगर हिंदू, देखो सुन लो, खालिस्तान आप लिख रहे हो तो फिर पूरा लिखो ना। एंड लिख रहे लिव हो, टुगेदर, अरे भाई, राइट? लिख रहे हो तो पूरा पूरा लिखा, लिखो। हाँ पूरा मैं जो बोल रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान हिंदू को, ठीक है ना, तो सिख यहाँ आए ना, तो आप पूरी दोनों का नाम खालिस्तान हो, भारत भी हो, इंडिया भी हो, सब मिल बांट के रहे, ओके, तो मतलब सेम हो सब जाएगा ना सब। ओके, हिंदुस्तान क्योंकि टोटल का नाम हिंदू, हम ओ तो यहाँ भाई, के है ना, बाहर से नहीं ना आए। ओए ओ यार चुप कर यार, सब कर। ओके, इसका नाम हिंदुस्तान रख दो, नहीं नाम इसका खालिस्तान रख दो, सब मिलकर रहे, करेक्ट? नहीं, हिंदुस्तान भी रखो, खालिस्तान भी रखो, भारत यार भी, एक जैसे कंट्री के भारत दो है नाम, इंडिया। यार तुम मेंटली रिटार्डेड हो चुके हो तीन इस ना, वक्त। अरे एक कंट्री के एडम, दो नाम रखो। एडम भाई मेरी बात सुनो, एक ओके कंट्री के 3 नाम है, चौथा क्यों नहीं हो सकता? ओके, मुसलमान तो लेगे नाउ ना। यार अभी तुमने बोला था कि जो पाकिस्तान बना है वो गलत बना है, अभी तुमने बोला था, अगर तुम उसको गलत कह रहे हो तो फिर तुम उसके ऊपर किस हिसाब से आ रहे हो कि वो ले गए, वो तो गलत लेके गए, तो उसके लिए तो फाइट है। तो फिर अगर तुम अपना अपना यहाँ पे ढोल पीट रहे हो तो पहले उस ढोल को तो साबित करो ना, फिर आगे चलना। वापस लाता हाँ हूं तुम्हें, मैं मेरा तुमने कहा मेरी मेरी पहले मेरी तुमने, बात सुनना, मेरी बात सुनना पहले, एंड मतलब कि एंड ऑफ मेरी पॉइंट पे सोच के है कि जैसे खालिस्तान बनता है, हमारे हजूर खालिस्तान साहब बनता है। हमारे से दूर ओके, जैसे दूर होता है। खालिस्तान बनता है, हजूर व्हेन वी क्रिएट हजूर हजूर साहब, खालिस्तान, हजूर, बात तो सुन लो, हजूर साहिब हजूर हमसे साहब, दूर होता है, हमसे दूर होता है, हजूर साहब हमसे दूर होता है। दूर। हाँ, जैसे ननकाना साहब पाकिस्तान में चला गया। ओके, ललकाना, ननकाना इज इन पाकिस्तान, अच्छा हाँ, उदाहरण पे। तो आप ऐसे करो, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान को, हम इधर ही आए ना, उधर से मतलब 10 लाख सिखों को मारा गया जब 1947 में, तो हमें यहाँ आप हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, तो चौथे हम मतलब मुसलमान तो ले गए, तो हमें आप अपने साथ रखो, और हमारी जो जैसे आइडेंटिटी है खालिस्तान है, उसको एक और नाम दे दो, मसला क्लियर है। यानी कि ओके सब ओके मिल, ओके, तो हाँ जैसे 3 नाम खालिस्तान, हो गए तो चौथा आप रख दो ना। खालिस्तान सेपरेट कंट्री बनाओ। खालिस्तान एक नाम हो, जैसे हिंदुस्तान है, भारत भाई है, एक सेकंड, और एक सेकंड, एक हम सेकंड, भी इसी चुप इतिहास का में हिस्सा चुप हैं। चुप चुप चुप, खालिस्तान अब सेपरेट कंट्री नहीं बनाना आपने। मेरी पॉइंट टू पहले शुरू से यही है कि एक मैंने सेकंड, आपको बोला खालिस्तान खालिस्तान मेरी, सेपरेट कंट्री बनाना है कि नहीं बनाना? नहीं, मैं इसका मतलब कि बांटने के हक में नहीं हूँ, मैंने आपको शुरू से ये खालिस्तान बोला। सेपरेट कंट्री बनाना है कि नहीं बनाना है? नहीं, अगर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है, हमारे खालिस्तान गुरुद्वारे। सेपरेट कंट्री बनाना है कि नहीं बनाना है? हमने खालिस्तान हिंदू, जैसे हिंदुस्तान है, भारत है, हमारी भी आइडेंटिटी हो, हमारा और खालिस्तान, भाई हमारा हिंदुस्तान। आइडेंटिटी आपकी है, आपकी एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है सिख। अब आप कह रहे हैं नहीं भाई, खालिस्तान बनाना देश के है। नाम पे आप बात कर रहे ओके, हो, तो देश देश, के, तो हाँ तो खालिस्तान एक सेपरेट देश बनाना है कि नहीं बनाना है? सेपरेट नहीं, सेपरेट हमने तो, ये पाकिस्तान है उसको भी साथ में लेके चलेंगे, हम तो वही बोल रहे हैं, उनका हमारा तो इस पाकिस्तान तो धरती अभी से लेना आपने है बता, ना। एक सेकंड, पाकिस्तान अभी आपने बताया आप अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, लेके चले उन्होंने गए आपके 10,000 लोगों को कत्ल किया 10 1947 लाख में, और आप लोग भाग के यहाँ पर आए, ये भी आपने बोला। 10 लाख, हाँ, 10 लाख, हाँ वो आप 10 लाख हाँ लोगों 10 ने, लाख आप 10 लाख लोगों को मारा गया, और आप भाग के यहाँ पे आए डर के छुप के, हाँ, जैसे ठीक है। जैसे 1948 में यहाँ पर मारा गया सिखों अब को, मैं ठीक अब है ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे ये कि अगर आप उनको तो अपने साथ नहीं लेके चला सकते,
उन्होंने तो आपकी बम्बू लगाई हुई है। अब आपको हाँ, हाँ। सेपरेट खालिस्तान चाहिए कि नहीं? नहीं सेपरेट, हमें हिंदुस्तान को ही अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक जैसे तो हमें ये कंप्लीट हिंदुस्तान विल बिकम खालिस्तान। आपको नहीं थोड़ा सा भाई, हिंदुस्तान में इस चाहिए, आपको पूरे का पूरे पूरा चाहिए या नहीं? नहीं, 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 आप ये बोल रहे हो कि हिंदुस्तान पे कब्जा करना है हमें, मैंने कब यही क्या बोल रहे कब्जा हैं ना करना है, आप? ये लफ्ज बोला मैंने? बिकम मतलब आप क्या इसको हिंदी में थोड़ा ये बताओ ना, आपने खुद ही मतलब बोला भी मुझे तो पूरे हिंदुस्तान का नाम ही खालिस्तान करना है। नहीं, मैंने ये बोला, देखिए भाई मुझे घबराइए मत, मैंने ये बोला जैसे रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान, रिप्रेजेंट ठीक है? क्या है हिंदुस्तान? मेरी देखो बात सुनो, बात सुनो। अरे बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुस्तान हिंदुस्तान जैसे जो यहाँ हिंदुस्तान हिंदुओं की रिप्रेजेंट करता है ना। हिंदू कौन है? हिंदू यहाँ जिसको आप सनातन धर्म बोलते हो। नहीं, सनातन धर्म हिंदुस्तान हिंदू नहीं है। हाँ लेकिन हिंदुस्तान है, तो आप जैसे तो भारत व्हाट इज है, हिंदुस्तान, इंडिया व्हाट इज इंडिया? में, इंडिया देखिए रिप्रेजेंट किसे करता है? देखिए, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट किसे करता है? हिंदुओं को, और उसमें हिंदू कौन है? मतलब हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म है। क्यों ओके, हिंदू मुझे हिंदू कोई धर्म? किताब दिखाएं जिसमें हिंदू धर्म हो। तो हिंदू तो बोलते हैं ना, हिंदू धर्म है हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं। ओके, वापस चलते हैं। क्या एक मुसलमान जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसको हिंदू बोला जाएगा कि नहीं? वो है तो पहले मतलब नहीं, वैसे उसको हिंदू नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो क्यों? कर्म के हिसाब से अलग हो गया ना, उसने एक किसने कहा है? आइडियोलॉजी ये अपना कहाँ ली। लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि आप जिस कंट्री में पैदा हुए हैं, हिंदू अगर नहीं कोई बोला बंदा जाएगा, हिंदुस्तान अगर का, कोई मेरी बंदा बात सुन। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसको पाकिस्तानी हम्म। कहा जाएगा, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो नहीं। क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, वो पाकिस्तानी बोला जाएगा। अगर एक हाँ कंट्री का लेकिन नाम हिंदुस्तान है तो हम्म हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग होंगे इनको हिंदू बोला जाएगा कि नहीं? नहीं, हिंदू नहीं बोला, यहाँ तो नहीं बोलते, हिंदू तो नहीं बोलते, ओके, हिंदुस्तानी बोलते हैं। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो नाम नहीं है, हम्म। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आजकल इंडिया नाम बन गया हुआ है तो इंडियन बोला जाता है। पुराने नहीं वक्तों इंडियन में नहीं, हिंदुस्तानी भी शट बोला द एफ अप, जाता है। गेट द एफ अप, लिसन। पुराने वक्तों में जब आपने बोला था, बीच में आपको खुद भी भूल गया होगा कि आपने बोला था कि हिंदू नाम अंग्रेजों ने दिया था यहाँ पे, करेक्ट? नहीं, सिंधु नदी जब हुई थी तब तो हिंदी। शट अप। सो जिस वक्त हिंदू नाम इसलिए दिया गया था अंग्रेजों ने कि अंग्रेजों को समझ नहीं लग रही थी कि इस रीजन में रहने वाले इन तमाम लोगों को जो कि डिफरेंट खुदाओं को मान रहे हैं, इन सब को एक बॉक्स में कैसे इकट्ठा किया जाए। ये हिस्टोरिकली लिखा हुआ है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने इस लैंड के नाम हिंद से इन सब को ज्वाइन टुगेदर करके हिंदू बना दिया। दे आर ऑल हिंदूज। अंग्रेजों के टाइम के ऊपर सिख भी हिंदू था, अंग्रेजों के टाइम के ऊपर सनातनी भी हिंदू था, अंग्रेजों के टाइम के ऊपर सारे के सारे हिंदू थे। इसीलिए आपको इस वक्त फिलॉसफी ऑफ हिंदुस्तान में आपको सब के सब मिलते हैं, ठीक है? दिस इज अ टर्म विच वाज गिवन बाय अंग्रेज, और उसकी वजह से ये आइडियोलॉजी बनी, एक नया नाम बना, एक नई आइडियोलॉजी बनी फॉर द पीपल लिविंग इन दिस लैंड। हाँ जी सर, इस चीज को रिजेक्ट हम्म। करते हैं हम? मैं ये बोलता हूँ इस बात को कि जैसे जो बाहर वाला है ना, उसके लिए आइडेंटिटी वही होती है, जैसे मैंने अमेरिका, पूछा बाहर वाले की। अमेरिका सब। हाँ जैसे आप बाहर वाले हो, आप सभी को एक साथ मैं में लेके मैं चलोगे, लेकिन रहने वाले मैं को अमेरिका मालूम चला होता है। गया, मैं अमेरिका चला गया, ज्यूम करो मैं अमेरिका गया, मेरा बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, अब वो अमेरिकन कहलाएगा या पाकिस्तानी कहलाएगा? वो पैदा वहां पे नहीं हुआ है। अमेरिकन कहलाएगा, ओके, लेकिन तो वो क्या यहाँ मतलब, वो भाई लेकिन क्या उसका उसके उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होएगा? अमेरिका में पैदा हुआ है, अमेरिकन कहलाएगा। क्या उसका पासपोर्ट अमेरिका का होगा? हाँ पासवर्ड क्या मतलब वहां जाके रहेगा तो क्या पासवर्ड उसको जहाँ। वहां जाके रहेगा? नहीं, वो वहां पैदा हुआ है, मैं वहां पे गया हूं, मेरे बच्चे वहां पे पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे हम्म बच्चे अमेरिकन कहलाएंगे या पाकिस्तानी कहलाएंगे? वो अमेरिकन। अमेरिकन कहलाएंगे ना? हम्म। तो ओके, आप ये बोल रहे हो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में मतलब सभी कहलाएंगे?
क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। हम्म, अच्छा, नहीं अब आप कह भाई। रहे हो कि मुसलमान तो बाहर से आए हैं। सुनो जरा, जो मुसलमान बाहर से हम्म, आए हैं उनकी हम्म, आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी सेम है। वो कहते हैं जी हम नहीं वहां सेम, यहाँ पे पैदा सेम हुए। नहीं, सेम है, सब करके सुने, सेम है। नहीं 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 सुनेंगे तो नहीं पता नहीं लगेगा। सेम नहीं। अरे बास्टर्ड, सुनता ही नहीं है। देखो, वो यहां पर पैदा हुए, उनके अबाव अजदाद चाहे बाहर से आए हैं, वो भी आपकी तरह यही कहते हैं हम तो पहले सनातनी थे, हम तो सनातन में से ही निकले हैं, हमारे तो जद्दी पुश्ती अबाव अजदाद भी यहीं पे थे, हमने तो सिर्फ अपना धर्म बदला है। हमारे धर्म में जो भी आना चाहे वो आ सकता है, हमारी मस्जिद में जो भी आना चाहे आ सकता है, हमें अपना देश चाहिए। ये कह के उन्होंने 1947 में अपना देश लिया, क्योंकि वो यहाँ की जंपल है, उनके अबाव अजदाद यहाँ के हिंदू हैं। आपकी स्टेटमेंट और मुसल्टों की स्टेटमेंट 16 आने एक ही है, 100% एक ही है। बताएं फर्क नहीं क्या है दोनों एक स्टेटमेंट में? नहीं, फर्क ये है कि उनका धर्म शुरू हुआ अरब से, हमारा धर्म शुरू हुआ यहाँ सो से। हमारे व्हाट, गुरु रहबर। एक सेकेंड, सो व्हाट। अभी हमने इस चीज के ऊपर सारी देखा था, आपका धर्म चाहे कहीं से भी शुरू हुआ हो, मैंने इसीलिए यहां पे हम्म, लाइन में अल्लाह डाला हुआ है। आपका धर्म कहीं से भी शुरू हुआ हो, वो यहाँ के धर्म के हम्म, मुताबिक नहीं रह गया। अब अगर आपका पूछ रहा हूं, मैं तमाम सिखों का नहीं कह रहा, आपका कह रहा हूं। तमाम सिखों को नहीं मैं बीच में रगड़ रहा, सिख बड़े अच्छे अच्छे हैं और मेरे से- मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं आपने बीच में कहा है श्री कृष्णा, श्री राम और श्री अल्लाह एक ही भगवान है, ये हम्म, आपने बोला हुआ है। हाँ एक बोला हुआ है कि शक्ति नहीं? है, अलग अलग नाम है, एक हाँ, अलग शक्ति अलग है। नाम है, एक ही शक्ति है, अलग अलग हाँ नाम है। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू बेहतरीन। सिखिज्म में आप अब रेफरेंसेस देख लिए गुरु ग्रंथ साहब में हाँ निकाल के। हाँ, मैंने मान लिया, मैं मान लिया एक ही मैं मुझे देखने की जरूरत नहीं है एक ही है। तो हम्म, वही शक्ति जो अल्लाह ने दी इनको, उसी शक्ति को वो भी यही कहते हैं। श्री राम अल्लाह का अवतार ही था, मुसलमान भी ये कहते हैं। वो कहते हैं श्री कृष्णा जो हम्म, था वो हमारा ही अवतार था, असल में वो हमारा पैगंबर था, आप लोगों ने बदल दिया उसकी टीचिंग को। नहीं वो भाई, भी यही कहते हैं श्री राम ये वही है। वो इसमें इसमें ये हमारा नहीं है, इसमें ये है कि जैसे एक है, एक शक्ति है, उसके नाम अलग अलग हैं लेकिन भाई सबका। आपकी आइडियोलॉजी अपनी मर्जी की है ना, हमने पूछा आपकी नहीं आइडियोलॉजी मजीद नहीं पूछा ना, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है। नहीं, अब मेरा आप यहाँ पे देखिए सवाल ये है कि फिर 1947 में मेरी उन्होंने जब अपनी आइडियोलॉजी कंट्री गुरु लिया। ग्रंथ साहब की है, मेरी और भाई आइडियोलॉजी वो गुरु मैं ग्रंथ साहब सर, की है, आप वो रेफरेंसेस देख है वो अपने लीजिए। पास रखे अभी आइडियोलॉजी। अभी जो सवाल मेरे ये है पास कि अब आपको हम्म, पूरा हिंदुस्तान चाहिए, थोड़ा भी नहीं चाहिए। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है जैसे हिंदुओं को, ठीक है ना, नाम वैसे ही अबे चलता तू है कि हिंदू है हिंदू। साले, तू हिंदू है, हिंदुस्तान में पैदा, तू खुद हिंदू है। नहीं मैं मतलब अकॉर्डिंग टू, नहीं हिंदू नहीं होता, ठीक है ना। भाई देखो, आपकी बात जैसे आप बोल रहे हो ना, यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन इनकी जड़ व्हाट इज एक है, यहूदी ऐसे क्या है, यहूदी क्या है, मेरी बात तो यहूदी सुन क्या है? लो, बात तो कंप्लीट होने दो। भाई अबे बात साले, दूसरे की भी अबे complete- अबे साले गाली खाएगा मुझसे अगर तूने इस्लाम को भाई यहूदीज्म और क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ा तो मैं यहाँ पे गांड नहीं मार दूंगा। बिल्कुल नहीं ना जोड़ी, नहीं, कहने का बिल्कुल भी अरे ना जो, जोड़ी, मैं यहाँ पे मार के रख दूंगा तेरी, उल्टा करके चलो चक्कर मारूंगा तुझे। आप डोंट ब्रिंग नहीं दैट। आप इसको ये बोलते तू हो अपने कि बारे में जो मर्जी बोलता रहे, तू यहाँ पे मेरे नहीं बारे में नहीं, ना मैं बोली। उदाहरण दे, जब हमारे पे उदाहरण होती है, जब आप भी होती है आप गाली पे आ गए, क्योंकि ठीक क्योंकि है तू ना। मेरे वो उदाहरण जब तू एक गलत बात बोलेगा मेरे बारे में तो मैं गालियां निकालूंगा इस वक्त। तो आप जैसे आप गलत बोल रहे हो, इस हिसाब मैं से तो क्या गलत हमारे बोल रहा हूं? मैं आपके जो आप हिसाब बोल से रहे हो गलत सामने बोल रहे लिखा हो। हुआ है, जो आप बोल रहे हो वो सामने लिखा हुआ है मैंने। भाई देखिए, अगर मैं बार जैसे बार कहता रहा हूं कि जो मैंने वो सामने लिखा है, देखो, अगर गलत लिखा है तो तो मुझे बता दो। आप उन मेरा ये कहने का मतलब है, जो आप क्रिश्चियन और वो यहूदी उनकी जड़ तो एक ही मानते हो ना, कि यहूदी और वो भी क्रिश्चियन की अलग है। जड़ किसे कहते हो आप? जड़ मतलब कहने का मतलब कि जैसे वो एक ही एरिया के है ना, कहने का मतलब किसने कि कहा? लोग एक किसने कहा? यहूदी जैसे यहूदियों में से क्रिश्चियन निकले हैं, किसने कहा? जैसे यहूदी सबसे पुराना धर्म है, मतलब यार किसी एक ना बात, किसी आइडियोलॉजी से यार कोई देखो ना कोई तुमने नई आइडियोलॉजी निकलती होती। तो
अच्छा, तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ से निकली है? इस्लाम से निकली है या हिंदुओं से निकली है? ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी उसी टाइम तुम्हारी बात पूरी आइडियोलॉजी कहाँ होनी। से निकली है? तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ से निकली है? इस्लाम से या हिंदुओं से? ऐसे ही जो हिंदू है और सिखिज्म, इनकी जड़ एक है। जड़ कहने का मतलब जड़ इनकी एक है, हाँ, एरिया ओके, एक वेट है। वेट, मैं लिख लूं, लेकिन मैं लिख लूं, मैं लिख हाँ लूं। हाँ हाँ, लिखो हिंदुओं आप। की, हिंदू एंड सिख की जैसे जैसे रूट यहूदी और क्रिश्चियन एक की। ही है, हाँ, साथ में लिखो, जैसे लाइक क्रिश्चियन और जूस एंड क्रिश्चियंस। ओके, हाँ, अब परफेक्ट, क्रिश्चियन और ज्यूज को अलग अलग नहीं ना, हम एक नहीं ना मानते। ओके। ये दोनों, अच्छा अब मुझे सिंपल सी बात बता दें, यानी कि हम्म क्रिश्चियन जो है वो कहते हैं कि जूस के पास जितनी भी चीजें लिखी हैं वो हिस्टोरिकली हम्म सही हैं और वो एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सही है। आप भी मानते हैं, ये- सिख, कि जो हिंदुओं की जितनी भी किताबें हैं वो हिस्टोरिकली सही लिखी हम्म गई हैं और हिस्टोरिकली बिल्कुल सही है। हाँ, सही है। ओके, बेहतरीन हो गया। तो जैसे फिर जैसे अब, लाइक ऐसे महाभारत ना, आप लाइक ऐसे अच्छा, महाभारत बोल लाइक रहे हो बार ना, बार, हम्म, है ना, रामायण। हम्म, हाँ, तो वो हाँ, तो सही है। सही है। हाँ, ओके, तो फिर सही है। बेहतरीन हो गया। तो फिर इनकी महाभारत, रामायण और किसी भी जगह के ऊपर अल्लाह तो नहीं है। आप अल्लाह को क्यों ऐड किया बीच में? तब तब वो तब तब अल्लाह नाम ही नहीं था। अच्छा, वो तो तब अल्लाह नाम नहीं 1500 था, साल पहले। बाद में आ गया। हाँ हाँ, बाद में आ गया। ओके, तो यानी इनमें से किसी को नहीं पता था कि अल्लाह नाम आएगा बाद में किसी टाइम पे? अब तब था नहीं, तो तब था नहीं। उनको मतलब आप तो भाई इसको देखो, बोल लो, पता देखो नहीं बात कि सुनो, मैंने जूस, उनके। जूस की किताब में तो मसाए के आने का लिखा है कि मसाया आएगा। हम्म। फुलफिलमेंट तभी होगी जब ऐसे मसाया तो, आएगा। हाँ ठीक है। हाँ, ऐसे तो अब बात ऐसे। यह है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी ने इवेंचुअली सिखों की आइडियोलॉजी इवेंचुअली हिंदुओं से आई है और उस आइडियोलॉजी में एक नए खुदा का नाम आना है, तो भाई फिर उस खुदा का नाम उनकी आइडियोलॉजी में लिखा होना चाहिए, वरना कैसे पता लगेगा कि आना है किसी ने? भाई देखिए, कोई भी आइडियोलॉजी होती है ना, वो जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने ये बोला कि जड़ एक, कहने का मतलब एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी से निकलती है। ऐसे धर्म बनते हैं, नहीं, धर्म कोई नहीं, ऐसे नहीं बन एक नहीं, जाते नहीं, एक उसके नहीं, लिए। नहीं, नहीं, आपने ऐसे यहाँ पे नहीं कि स्क्रीन पे, सिखिज्म आपने प्रचार से हो स्क्रीन पे गया। क्या लिखा है? आपने स्क्रीन पे क्या लिखा है? मैंने ये वो क्या लिखा है? कि जस्ट लाइक क्रिश्चियन एंड जू, और आपने मुझे स्पेशली कहा कि इस बात को लिखो, कहा ना? हाँ हाँ, लाइक ओके, एज वो तो बोलते ही है ना। ओके, सो नाउ, नाउ मैंने आपको अब बताया। देखिए देखिए नहीं, देखिए देखिए रुक जाए, मैडम भाई, देखिए, देखिए। ओ भाई, आ, आपने देखिए, नहीं इस्लाम को पहले इसमें डिलीट कर दिया। कहने का मतलब, आपने मेरा इस बात, लेकिन जो मुल्ला है वो तो बोलते ही हैं। ओके, मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि हम्म जूस की किताबों में मसाया के आने के बारे में लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है हम्म और ये भी हम्म लिखा है उसने आना है, लिखा हुआ है ना? हम्म ओके, हम्म। आपके हिंदू किताबों में अल्लाह के आने का क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि उस टाइम हिंदू, मतलब अल्लाह तब नहीं था। मतलब हिंदू अल्लाह को तो इसमें है नहीं है। मतलब कहने का मतलब, इस्लाम का इसमें हिंदुइज्म में है नहीं है। तब था इस्लाम नहीं का, इस्लाम। हिंदुइज्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है ना? देखिए देखिए भाई, आप मेरे को शायद समझ रहे हो कि मैं मुस्लिम सपोर्टर हूँ। नहीं सर, ठीक है ना? आप मुसलमानों से बड़े डंगर हैं। मैं अभी से पूछ रहा हूँ नहीं नहीं। कि इस्लाम का अच्छा, हिंदुइज्म से एक क्या ताल्लुक है, जरा वो बताएं। एक मिनट, एक मिनट। आपने मुझे बोला मुस्लिम से, मैं पहले जहाँ मैं काम करता हूँ, तो सर मैंने मैं पूछा, थोड़ा। मैंने आपसे पूछा ये बात, मैं नहीं आपसे पूछ नहीं, रहा हूँ कहने। कि हम्म ये बताएं, मुझे अपने काम के बारे में मत बताएं। हम्म। नहीं, कहने का मतलब कि अब मैं वहां से बहुत हिंदू लड़कियों को बचाया भी है। आपके चैनल दिखा दिखा के बचाया है। तो अगर मैं किस ये चीज से काम बचाया? का हिस्सा ना, मतलब जब वो किसी उनको जैसे मुसलमान मुस्लिम होने के से, साथ। मुसलमान हाँ, होने से? बचाया। तो हाँ, आपका तो, आप बचाया, तो कह रहे हैं नहीं कि शादी कर रहे थे। आपका धर्म तो सेम है मुसलमानों का, आपने बोला। नहीं, मैंने ये बोला कि ये सभी को साथ में लेके चलता है भाई। आप एक नहीं भाई, इस्लाम के साथ जोड़ रहे भाई हो। सभी को साथ लेके चलो ना, अपनी तो बेटियां सभी दो, को उनको साथ क्या में लेके मसला है? चल। तो साथ में लेके चलो, अपनी बेटियां दो मुसलमानों को। नहीं नहीं, देखो, मुसलमानों को ये नहीं, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल। अब देखो,
तेरा जैसे स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है? अल्लाह 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 तुम्हारा भगवान है, तुमने लिखा। हम्म, नहीं अल्लाह नहीं, अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहब, आप ओके, अकॉर्डिंग टू गुरु रेफरेंसेस ग्रंथ। देख लीजिए। लो जी संगा जी आ जाओ जी, हम्म, अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ तुसी आ जाओ, मैं बात ही करांगा इनू। अच्छा जी, हाँ मैं दसो स्वागत है, दसो। सॉरी आपको काफी टाइम लिया मैंने बहुत संगा जी। दूर है, नहीं कोई गल नहीं जी। साडी आवाज बड़ी पहला स्लो है, जरा दस ऊंची ऊंची बोलना जरा थोड़ा, और उर्दू उर्दू मिक्स मेरी करके बोले आवाज ताकि लोगों को समझ लगे, क्योंकि उर्दू आवाज स्ट्रीम क्लियर चल नहीं आ रही है रही? इस वक्त। सर है जरा दूर से आ रही, मैं तेज कर रहा हूँ आपकी आवाज, बढ़ा रहा हूँ, चलें अब बोले। 1 मिनट यार, 1 मिनट दे मुझे। ठीक कर दिया, बोले आप। हाँ जी, आ रही है अभी और ठीक? हाँ आप ठीक है, आप बोले। नहीं वो ओके। जुजू भाई कहाँ है? अच्छा बात सुनो भाई, जो आ गया उससे बात हाँ कर जी, लो। गल सुनो, तुसी पहला हाँ, आपने पहले तो इनकी जो बात थी मैप वाली बाउंड्री, पहले मैं उस चीज़ पे आता हूँ। पहले आप बाउंड्री आपने आप कंफर्म करें फाइनल के हाँ पूरे हिंदुस्तान का नाम यानी कि खालिस्तान रख दो, ये पॉइंट है आपका, यस और नो? नहीं, हाँ मैंने ये बोला। ओके अब आप मेरी बात को एक मिनट, भाई, मैंने हाँ सुन ना लिया पे है, नहीं मैंने होता आपकी है, आप बातें स्टेटमेंट तो मैंने सुनो, स्टेटमेंट यार सुनो, यार स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट तो सुनोगे ना। यार कितने दिन भाई, मैं सुन लिया है, मैं आप सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ ताकि हम हाँ जल्दी से मैं जल्दी पॉइंट मैं 4-5 हाँ कवर कर लूँ आपसे, इसलिए भाई, पूछ रहा हूँ मैं। स्टेटमेंट आपने स्टेटमेंट ये ज्यादा बोला है से ना ज्यादा यार, 25 सेकंड की होगी, इससे चलो ज्यादा ठीक नहीं है होगी। कोई बात मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये इस देश का बंटवारा हुआ 3 धर्मों के नाम पर, हम छोड़ जैसे उसका कत्लेआम, सिखों का कत्लेआम हुआ 1947 में, तो हम मुसलमान तो ले गए, आइडेंटिटी आइडेंटिटी 2 बच गई, और भाई, हिंदू सुन और लिया सिख। मैंने, सुन तो ली आपकी पूरी दोनों को क्लियर साथ बात में ये सुन कर ली लो। है, बोलने दे देंगे हाँ प्लीज मुझे। ओके, आपने ये बोला है ना कि हाँ हमें नहीं मिला, हाँ, यही बोल रहे हो ना आप, एक तो बार उसमें बात बोल पता है क्या देंगे। है, तुम समझते हो कि कोई तुम्हारी नहीं नहीं सुन रहा, लेकिन तुम गधे हो, सब तुम्हारी सुन चुके हैं, नहीं, तुम्हें बार बार रिपीट हमने करने की भाई जरूरत नहीं है। यहाँ वही हम बात हम नहीं यहाँ बोल रहे हो तुम्हारी तरह नहीं है, दिल्ली चुप करके में, अब अगले की सुन लो, अब अगले की सुन लो। दिल्ली भाई दिल्ली में इसको, हमने विधवा कॉलोनी देखी है। ओ यार गल ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲ ਜੀ। ਮੈਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ हम्म can we ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਪ ਤੇ? ਓਕੇ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾ ਕਿ 3 ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ हम्म 3 ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ देयर आर टू बी, ਤੇ ਲਿਖਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ देयर विल बी 2 इंडियाज, Hindu majority India हम्म and a Muslim majority India. In other words, Hindu India and Muslim India. Nobody offered you हम्म। anything. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਫਰ ਨਹੀਂ और ਕੀਤਾ भाई ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। इथे ना, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ इथे मैं ਨਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਰ, दसो 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 ਸੁਣ ਲਓ दसो ਸੁਣ दसो ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ। दसो। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 15% ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ। हम्म 14 ਅਗਸਤ 1900 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ 47, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ 15% ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 15% ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ हम आज भी जाके फोटोज देख लें ना, हरमंदिर साहिब की 19th सेंचुरी की, गोरों के जमाने की, तो वहां पर महंत भी बैठे हैं जो ऊपर उनका जो पिंडा होता है ना ऊपर वाला, वो नंगा होता है विदाउट शर्ट, वो अपने आसन लगा के बैठे हुए हैं। तो गोरों ने आपको कोई ऑफर नहीं किया था, पहले तो मैं इस पे क्लियर कर दूं। दूसरा ये कहाँ लिखा है, हिंदुस्तान, कहाँ लिखा है भाई? दूसरा पॉइंट मैं यार आपने गूगल जाके कर लो ना पार्टीशन का डॉक्यूमेंट। बैक स्टेज की आप अपनी बात बोलो यार, वो नहीं बोलने दे रहा, पता लग वही गया मैं मुझे यार, उसका। एक चीज तो बोलो मान गए ना आपने, अपने मैंने स्टेटमेंट आपको बोलो। बोला था कि ये उनसे भी घटिया हैं, और मैं बोल डंगर चुका हैं हूं, बोल बड़े। चुका हूं, बोल चुका हूं, सेम सेम आइडियोलॉजी। आगे चलो, अपनी बात रखो, मुझे भी सुनना है। ओके, पहली बात है ये जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल रहा है ना हिंदुओं का, ये कोई नहीं है हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुओं का। हिंदुस्तान ये बोल रहा है कि सबको रिप्रेजेंट करे, सबको साथ लेके चले, वो ऑलरेडी भारत में हो रहा है। कोई एक हक नहीं है इस वक्त इसके पास जो नहीं है, या किसी के पास नहीं है, बेस्ड ऑन के वो मुस्लिम है, या वो सिख है, या ये है। दूसरी बात ये बोल रहा है आइडेंटिटी हमारी है खालिस्तान आइडेंटिटी। तो अगर ये बात करने दे तो मैं इसके मुंह से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये बढ़ने दे, खालिस्तान की आइडेंटिटी कहां है? ये मुझे बताओ पहले पहले कि खालिस्तान कहां है आइडेंटिटी। पहले उसको आपका जवाब दे लेने दो, उसके बाद उससे सवाल पूछना। हाँ भाई, 2 जवाब। अब 15% है तुम लोग, कैसे कंट्री बनाएंगे 15%? 15% नहीं, कंट्री की मैंने आपको ये बोला कि जैसे इन्होंने बोला ना कि हिंदुस्तान में है इनकी सब कुछ राइट बराबर है। नहीं भाई, राइट बराबर नहीं है। आप देखिए, कौन जब सा नहीं है? हजूम एक है, आप कौन सा एक राइट? 1947
जैसे 1984 में आप सर देखिए अभी की बात करें अब अभी की बात करें, पुरानी बातें ना करें। आपने कहा अभी अभी बनाना ना भाई, खालिस्तान, उस वक्त तो कल आप लोगों ने कल खालिस्तान का नाम नहीं कल लिया था। आज नहीं कल उस वक्त आज की भी से बात कर लें अच्छा एडम उस भाई, वक्त उस वक्त अच्छा की करते भी हैं कौन सा यार कानून था? खालिस्तान। यार बात भाई, ये है देखिए गंगा, देखिए एडम बात ये है कि भाई, टॉपिक एडम भाई, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया और मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ अच्छा इस अच्छा, वक्त। ओके ओके ओके, फिर मैं खालिस्तान भाई ओके, खालिस्तान इन्होंने कब बनाने की बात की थी? खालिस्तान बनाने की बात इन्होंने कब की है? ज़िया के बाद जब ना? गोल्डन जब दरबार साहब पे नहीं, तब जब तो अब लोगों के मन में तब आता है जब दरबार ये साहब पे नंबर अटैक हुआ नंबर ऑफ सन सन बताएं, सन 1980 1984 में, मतलब 1984 में, इससे ज़िया के दौर के इससे बाद। ओके पहले इससे ओके जी, लेकिन ज़िया के इससे दौर के बाद। पहले हुई। भाई एक सेकंड हम्म, यार, चुप यार। हम्म। डॉक्यूमेंट्स में कब आया कि कंट्री अपनी बनानी है? 84 में? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में तब जो मोर्चा चला है वो कंट्री बनाने का नहीं चला। बिल्कुल याद कंट्री आप का देखो चला है। देखिए, मेरा सवाल क्या है? आप सवाल है, आप सिख हिस्ट्री नहीं जानते भाई। एडम भाई, मेरा आप सवाल चाहे क्या है? आपने सुनी होगी, मैंने एक तब पूछा है कि सुनी मैं क्या होगी। जानता हूँ क्या नहीं जानता हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा है भाईजान, खालिस्तान बना एज ए कंट्री बनाने की बात कब शुरू हुई है, वो मुझे बताइएगा जरा प्लीज। 1920 में। 1920 में? हाँ, ओके तब हुई कोई है। अच्छा जी लो जी, पहली बार तब हुई है। 1920 में के सिखों को अपनी अलग कंट्री चाहिए, राइट? उसका नाम खालिस्तान होगा। नहीं, तब पहली बार मतलब वो हुई है, इसकी बात हुई है जब देश का बंटवारा हो रहा था। जी सर जरा दिखाइएगा मुझे डॉक्यूमेंट, और उसकी उसकी में बेस क्या थी वो जरा बंटवारा हो रहा दिखाइएगा था। प्लीज, इसका एविडेंस दे दें। नहीं एडम साहब 1920 में देश का बंटवारा हो रहा था। हाँ सर उनके नहीं, मुताबिक हो देश रहा का था ना यार, बंटवारा नहीं हो रहा होने दे। था। आपने सुना कि पहली बार जैसे धुआं सा निकला, भाई वो भाई दिखा देना 1940 भाई, एविडेंस 1940 दिखा जैसे देना आप इसको देखिए, आप इसको खालिस्तान ले, लेकिन भाई, एक एविडेंस सेपरेट दिखा दें, स्टेट एविडेंस आप देखो। यहाँ इधर की एविडेंस किताबें दिखा दें जैसे सर, जैसे संगा भाई ये भाई बोल रहे हैं एविडेंस कि दिखा दें भाई साची साकी बात, झूठी है, झूठ भाई, यही बोल रहे एविडेंस हैं ना दिखा आप। दें, मैं टॉपिक चेंज एक नहीं से करें। एक सवाल पूछ लूं सिंपल ही, नहीं तो इसने कोई आंसर नहीं देना। यार वो इसलिए कि खालिस्तान अभी की अभी जो इसने 1920 की बात की है ना, जरा प्लीज वो ले लेने दो पहले इससे, ताकि पता लगे कि ये भी मुसलमानों की तरह इंतहाई झूठे हैं, जो मर्जी बोल देते हैं, एविडेंस कोई नहीं होता। सो भाई साहब आपका एविडेंस ट्रस्ट मी ब्रो है या कोई एविडेंस है आपके पास? नहीं, 1947 में जब जो उसको नहीं अंग्रेजों का बंटवारा 1920 का, हुआ। 1920 का कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, मतलब कहने का मतलब भाई हिस्टोरिकल तो है ना। हिस्ट्री हाँ, तो वो दिखाएं ना मुझे, कहाँ पे एविडेंस, कोई हिस्टोरिकल, कोई आप लोगों ने चर्चा किया था, कोई सड़कों पे निकले थे, कुछ तो ऐसे तो होगा भाई हिस्टोरिकली। आपने भी आप भी, हाँ, वो सड़कों पे भाई हाँ वो तो कोई एविडेंस है? उसके, हाँ, बाद में पंजाबी मोर्चे लगा, दिखाएं पंजाबी दिखाएं। मोर्चा। आप हाँ यूट्यूब पर पंजाबी मोर्चा। पंजाबी मोर्चा में लिखा, पंजाबी मोर्चा 1920 के अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ था कि खालिस्तान कंट्री बनाना है। 90 या 20 में नहीं हुआ था, कहने का अच्छा नहीं मतलब हुआ था। तब बात चली थी, तब बात अच्छा ये चली जो थी बात जब चली थी एक मिनट 1920 में, भाई, इसका एविडेंस देखिए क्या है? देखिए जब सिखों के साथ धोखा। ओके जी, बैक स्टेज किया इनको। लो जी दोस्तों, 1920 का कोई एविडेंस नहीं है इनके पास, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ जी सर, 1947 का एविडेंस दिखाइए प्लीज। आप जिस मर्जी, मतलब 1947 का साची साखी है, दिखा दें साची स्क्रीन पे साखी, लें। वो भाई किताब टाइम चाहिए, स्क्रीन पे मैं कैसे, टाइम स्क्रीन पे चाहिए। मैं एडम कैसे भाई, देखूं? नाइन जी हैं? इसकी हाँ। इसकी सोर्स जो है ना वो ट्रस्ट मी ब्रो नहीं है, पर इसकी जो इसकी सोर्स है ना, जो इसकी सोर्स है वो ट्रस्ट मी ब्रो है। ये साची साखी एक बंदे की किताब की बात कर रहा है जो सिविल सर्विसेज से जिसको निकाला गया था, और उसने जब सारे हम्म, बंदे मर गए ना, तब उसने जाके ये बातें की हैं 70s में भाई, आके, 71 में उसने। हाँ, मेरी गल सुन लेने यार, तेरी भी सुनी जानी है हाँ, सारे। मैं 5 मिनट ਲਈ अद्धा घंटा हो गया, अभी तक तो एक जवाब नहीं दिता, बोलन दे। सच्ची साखी वो जब झूठी आप साखी है, एक बंदे की बुक है, ठीक है। गुरुआं ने हिंदुस्तान क्या सी या खालिस्तान क्या सी, मैं इत्थे तेरी गल खत्म कर देना। एक गुरु ने दस गुरु खालिस्तान जिन्हें खालसा बनाया सी, कित्थे क्या खालिस्तान बनाना वा? गुरु साहब ने खालिस्तान खालसा राज वर्ड, बोलिया। वाह गुरु साहब क्या ने बात खालसा है। बोलिया राज आ गया सी, रणजीत सिंह दे राज भाई, च डन हो खालसा गया। राज खालिस्तान खालसा ही राज है। बन गया, खालसा चला गया नहीं गा, कित्थे लिखा खालिस्तान, कित्थे लिखा? ये तुसी कह रहे हैं, खालसा राज खालिस्तान ही आप कह रहे है। हो नहीं है, कहाँ लिखा है दिखाओ, कहाँ लिखा है राज दिखाओ कि करेगा खालसा राज खालसा, खालिस्तान है। राज करे, एक राज मिनट, करेगा राज खालसा, तो करेगा भाई से खालसा, खालसा कौन आखी है? रहे ना कोई। भाई हाँ की देखिए, रहे ना कोई, राज पांच करेगा बजे से मिलेंगे बच्चे शरण जो होए, तो खालसा राज कर हाँ, रहा है, कहाँ नहीं कर रहा कितने खालसा कर राज?
इंडिया में भाई कौन से हाँ कोने पे खालसा नहीं जा पा रहा है? खालसा ट्रेन में बैठ जाता है बिना टिकट लिए एसी हाँ उसमें। खालसा दिल्ली में जाके खालसा दिल्ली में जाके पुलिस आप वालों के ऊपर अटैक करता है। खालसा आप पंजाब में पुलिस इसको वालों की तलवार के साथ फोटो उतार देता हाँ है। आप इसको खालिस्तान कहाँ राज लिखा है? बोलते हो। खालिस्तान कहाँ आप लिखा है दिल्ली गुरबानी में बता। खालिस्तान आप कहाँ दिल्ली लिखा में है आकर गुरबानी में देखो। बता। आप खालिस्तान दिल्ली में कहाँ आकर लिखा है देखो। दिल्ली में। सेवन सेवन अच्छा यार, मैं थाउजेंड जरा मॉडरेट लड़कियां। करूं थोड़ा सा, मैं जरा मॉडरेट करता हूं। मिस्टर एवार, आप जो है वो वंस अगेन आए हैं डिफेंड करने, तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, बजाय इसके कि आप अगले की बात के ऊपर ओवर स्पीक करो, उसकी बात ना आने दो। इससे बेहतर ये नहीं होगा कि अगले का सवाल पूरा सुन लो और दिखा दो कि यहाँ पे लिखा है एविडेंस। आपको अच्छा। डिबेट करनी थी, संगा से करनी थी। मैं कर रहा था डिबेट, लेकिन संगा जी आ गए, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद संगा जी, तुसी आ गए। अच्छा, ये वही लेकिन भाई हैं जिसके बारे में आपने बताया जी था? वही भाई है जिसका मैंने आपको मैसेज अच्छा, भेजा था, अच्छा जी। ठीक ये है वही जी। भाई है। ठीक है, अब संगा साहब आ गए। अब मैं ये कर सकता हूं आपके लिए कि उन्होंने सवाल किया है, आप उनका जवाब दे दें, और जब वो सवाल आप फिर उसके बाद एक सवाल आप कर लें उनसे, वो जवाब दे दें। लेकिन बात यह है कि जवाब दोनों जो है ना वो देंगे एविडेंस के साथ, एविडेंस के बगैर कोई नहीं देगा। तो अब उन्होंने आपसे एक सवाल किया है, उसका जवाब एविडेंस के साथ दे दें, फिर उनसे सवाल कर लें हम, मगर ओवर स्पीक ना करें, फायदा कोई नहीं ओवर स्पीकिंग का। हाँ मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। ये कह रहे हैं राज कर रहा है, तो ये 1984 को अगर इतने रेप हुए यहाँ पे विधवा कॉलोनी में, घरों घरों में जाके देखा है, एविडेंस आपको 100 मिल जाएंगे केस। ठीक है ना, उसमें लाइटें मार मार के सिखों की लड़कियों को उठाया गया, तो ये तो ये हम भी इसको मान राज रहे हैं सारा समझते हैं चीज। तो है। ये तो हम भी सारी चीज मान रहे कि हुआ है, तो वो क्यों हुआ उसके ऊपर बात। ओके, अभी बिना इंटरप्ट किए, क्या आप में इतनी हाँ सी देखो जरूरत है कि देखो, हाँ या ना में जवाब। ओ आप यार ये बात बोलते तो हो ना। सुनो यार, यार फिर बोल रहे हो, जब तुमने बात खत्म कर दी है, अब वो बोलना शुरू हुआ है, अब लेट हिम आंसर। तुमने एक सवाल किया है यार, उससे, अब उसे जवाब तो देने दो ना। क्या पागल हो तुम? अब उसे जवाब दे रहे हो, उसे जवाब देने दो यार जवाब से। फिर मैं इसे ऐड करता हूँ क्योंकि जवाब नहीं देने का। इसे बाद में ऐड करें। ओके, अभी ये भाग भगा के अभी 20 से 50 से ये आ गया है जी 84 पे, जो विधवा कॉलोनियों पे ये घर घर गया है। ठीक है। अच्छा, ये ओके, अब 84 का वाकया है, सो ये अभी 47 का वाकया नहीं है, ये 84 का वाकया ये दिल्ली राइट्स पे है। आ ओके, गया दिल्ली, अच्छा ये। दिल्ली राइड पे आ गया। अच्छा 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 अच्छा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे बता हम्म, दे, कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। जी। तो रेप हुए हैं, सिखों को मारा गया, ये तो हम भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि हाँ, कि राजीव गांधी ने सीधा ऑर्डर दिए हैं, सबको पता है कांग्रेस ने करवाया है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो रिटन फैक्ट है, सारी कंट्री मानती है कि, और सारी कंट्री बोलती है बुरा हुआ है। हुआ क्यों है, अभी मैं बहुत आराम से आपको 5 स्टेप में बता देता हूँ। हुआ इसलिए है कि इन्होंने उनके इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड्स थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उन्होंने विश्वासघात करके, दगेबाजी करके इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया, जब वो नहीं एक्सपेक्ट करी थी उन्हें करेंगे। ठीक है, और उनकी वो करने की वजह थी कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसलिए हुआ कि क्योंकि कुछ टेररिस्ट जो थे वो गन्स लेके जाके हरमंदर साहब में जाके बैठ गए थे और बोल रहे थे कि जी, और वो वहां से बैठ के बैंकें भी लूट रहे थे, उसके अंदर ही वो पुलिस ऑफिसर की हत्या भी कर रहे थे, उसके अंदर ही वो लड़की का टॉर्चर कर रहे थे, उसके ब्रेस्ट काट रहे थे, उसका रेप कर रहे थे, और और वो हर जो भी रेपिस्ट था ना, वो वहीं पे आके रह रहा था। उनके ये सारे बंदे थे जो वो वहां कब्जा करके बैठे थे, वो वहां से नहीं निकल रहे थे, और उनकी सारी मूवमेंट थी वो एक बंदे की किताब की थी, जिसका नाम उस बंदे ने लिखा है सच्ची साखी, जिसमें वो बहुत चीजें क्लेम करता है। वो बस उसकी बुक का बस ये है कि ट्रस्ट मी ब्रो, ये है। सो मैं भाई को ये बोलता हूं, अगर वो हथियार लेके वहां तुम्हारा संत नहीं बैठता, ना ऑपरेशन ब्लू स्टार होता, अगर वो बाहर भी आ जाता तो ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं होता, ना इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता, और ना ही सिखों का कत्लेआम होता। तो बताओ, उसके बाद सिखों का कत्लेआम हुआ है? या इंदिरा गांधी की असैसिनेशन से पहले हिंदुओं ने कोई अच्छा, सिखों को ऐसे मारा है? संगा जी, जी असल जी। में दिस वाज अ पॉलिटिकल थिंग, इट हैज या एवरीथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। सो जी जी। इसका इसका धार्मिक वैल्यू के ऊपर कुछ नहीं है, ये पॉलिटिक्स के ऊपर था। इन जी शॉर्ट, इट वाज जी। पॉलिटिकल वॉरफेयर। हाँ जी एवार साहब, आपने बात सुन ली उनकी, माइक आप क्या बोलिए। देखिए, ये मैंने बोला कि ये बोल रहे हैं पीछे भी, इसका मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं 1984 पे वो ये करेंगे तो हम वो मारेंगे, रेप करेंगे, मतलब उठाएंगे, सब कुछ ये करेंगे जैसे 1947 में मुसलमानों ने किया था।
ये नहीं बोल सर, रहे हो ना नहीं सर, ऐसा नहीं ये बोल तू रहे बोल आप। रहा है, मैं नहीं संगा बोल जी, रहा। संगा जी, भाई। संगा जी थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा। मिस्टर तूने एवर बोला कि साहब, आप राज है, राज में ओए ऐसा ओए नहीं ओए होता, गालफानी, राज में ओए बैक स्टेज। एवर साहब, आप सुन नहीं रहे थे। इट वाज ए पॉलिटिकल वॉरफेयर, पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर हुआ। इट हैड नथिंग टू डू विद रिलीजियस वॉरफेयर। क्या आप इस चीज को एग्री करते कि रिलीजियस नहीं था, पॉलिटिकल था, मिस्टर एवर? नहीं, ये रिलीजियस पॉलिटिक्स दोनों ही था, ठीक अच्छा, है ना। रिलीजियस कैसे था, जरा वो बताइए लेकिन प्लीज। लेकिन जिनका राज, भाई साहब, ये नहीं मैंने पूछा, मैंने कहा है रिलीजियस कैसे था, प्लीज वो बताइए पहले, प्लीज। देखिए भाई, आप ना बात वही बोलते हो जो आपका प्रश्न है, एक सीधी बात आप बोल देते हो कि इस पे ही चलो आप, नहीं ठीक है सर, ना। कोई तो सर सीधी लाइन पे चलेंगे तो रास्ते तक पहुंचेंगे ना, विंगी शिंगी चलते रहेंगे तो रास्ते पे कैसे पहुंचेंगे? सिंपल सी बात है। नहीं नहीं, अभी जो हिस्ट्री है आप ना, बैक स्टेज की, आपको दोबारा से, क्योंकि आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देते, मैं आपको टाइम देता हूं कि आप बोले, लेकिन आप बोलते नहीं है। आप क्वेश्चन एक और कर देते हैं, तो जब क्वेश्चन और करेंगे तो अगले बंदे को जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब देखें, बात ये है, आपने एक और स्टेटमेंट दी कि जी खाली पॉलिटिकल नहीं था, रिलीजियस भी था। मेरा सिंपल सवाल ये है, भाई साहब ये रिलीजियस कैसे था, वो बता दें प्लीज, वो बता दें, डिफाइन दैट एंड टेक जैसे आउट ना, ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मेरी बात सुनना भाई, आप एक प्रश्न दूसरा प्रश्न, चार पे प्रश्न ले रहे हो, बिकॉज ठीक है ना। बिकॉज मेरे प्रश्न, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज अगर आप कोई क्लेम करेंगे ना, तो मुझे उस क्लेम का एविडेंस लेना है आपसे। दैट्स द एविडेंस। हाँ आपने क्लेम किया है कि मेरा रिलीजियस भी था, तो मेरा मेरा जवाब ये है, मेरा सवाल ये है भाईजान, रिलीजियस कैसे था, क्योंकि दैट्स योर क्लेम। बात भाई देखिए, बात यहाँ पे, पहले आपने बोला ये सिखों के, वंस अगेन, इट हैज नथिंग टू डू, पीछे नहीं जाए, टॉपिक चेंज नहीं करें, अब मुझे इसका जवाब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपने क्लेम किया है, हिस्टोरिकली हमें पता है ये पॉलिटिकल था, हिस्टोरिकली सारी दुनिया को पता है ये अपना पॉलिटिकल था। आपने एक नया क्लेम कर दिया है कि ये रिलीजियस भी था। मैं कहता हूँ परफेक्ट, हो सकता है रिलीजियस हो, मेरे पास नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज मुझे यहाँ पे दे दें, वो ज्ञान मुझे यहाँ पे दे दें कि ये रिलीजियस कैसे था, प्लीज। क्योंकि वहां पर पगड़ी वालों की लड़कियां उठाई गई, उनके गलों में टायर डाले गए, किसी और के नहीं डाले ओके, गए। पॉलिटिकली था ना, क्योंकि पगड़ी वाले ही जाके उस पॉलिटिक्स के साथ लड़ाई कर रहे थे, लिहाजा पॉलिटिकल था, इनसाइटेड बाय द पॉलिटिक्स था। तो ये इट हैड धर्म भी नथिंग था। टू डू विद रिलीजन। नहीं, धार्मिक कैसे ध- था वो बताए ना। धर्म भी, जब आप एक पर्टिकुलर घरों के निकाल कर सिखों को ही मारोगे, तो फिर रिलीजन ही हो गया ना। क्योंकि नहीं, पॉलिटिकल था ना। देखें, बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। एक श्री राम के नारे लगा के लोग जा रहे हैं, भाई लोग जा ये सिख, बैक स्टेज, श्री राम के नारे लगाते हुए लोग जा रहे हैं, मुसलमानों ने पथराव किया, मुसलमानों ने पथराव किया, हिस्टोरिकली है। उसके बाद सिख वो अपना हिंदू आ गए, उन्होंने मुसल्टों को मारा, ठीक है। यहाँ पे बात आ गई कि रिलीजियस बेस के ऊपर एक इंसाइटमेंट हुई है, ठीक है। उस इंसाइटमेंट में दोनों पार्टियां आपस में लड़ी हैं, ये तो हो गया रिलीजियस बेस। यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंदिरा गांधी की हो रही है, उसको मारने की हो रही है, उनके वहां पे खड़े होने की हो रही है। उसकी बेस के ऊपर एक मुल्क में राइट क्रिएट किया गया कांग्रेस द्वारा, जो कि अब ये सारी पॉलिटिकल इंसिडेंट में मुझे ये समझा दें कि रिलीजियस कहाँ पे है। रिलीजियस तब होता है जब कहा जाए कि आपके गुरु गलत है, आपके गुरु ने ये बात गलत की है, हम आपको ये वाली इबादत नहीं करने दे रहे, या फिर वो होता है रिलीजियस। मुझे रिलीजियस उन आंसर दिखाएं इसके अंदर, रिलीजियस आंसर कहाँ है वो बताएं। रिलीजियस आंसर ये है, सिखिज्म में पॉलिटिकल और रिलीजन दोनों को मानता है। अकाल तख्त इसका गवाह है, मीरी पीरी निशान इसका भाई साहब, यहाँ पे गवाह। इस इंसिडेंट के अंदर तो रिलीजियस मेरी बात सुनना, इंसाइटमेंट कहाँ है इस इंसिडेंट में? रिलीजियस, जब आप एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट करोगे तो वो उसका रिलीजन ही हो गया। भाई साहब, जब रिलीजियस राज, आंसर कहाँ है? आपने संगा की बात रिलीजियस, सुनी थी? अच्छा, ये अच्छा मुझे बताएं कि ये शुरू कैसे हुआ था? संगा ने जो बात की है, उसने जो बात बताई है सारी, वो हिस्टोरिकली गलत बताई है? उसमें कहाँ पे गलत बताई है उसने? मतलब उन्होंने, जैसे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर राज है, ठीक है ना, मैं ये राज बोल की रहा बात हूँ नहीं, एक राज। सेकंड, एक सेकंड, राज की बात नहीं, ये जो इंसिडेंट आप अब बयान कर रहे हैं, वो इंसिडेंट जो संगा ने बयान किया है हिस्टोरिकली, वो जरा मुझे रिपीट करें कि ये सारा कुछ क्यों हुआ था, हुआ क्यों था? ये हुआ था कि जैसे इंदिरा गांधी को मारा सिखों ने, किसने मारा? ठीक है सिखों ने ना। मारा? अच्छा, सिखों ने हाँ मारा। सिखों ने मारा, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जो सारे है, सिख मार दिए, सारे सिख मार इंदिरा दिए, गांधी जो है मतलब जो भी हो। इंदिरा गांधी जो है
सारे सिख तो नहीं मारे, सारे सिख मारे होते तो आज आप जिंदा ना होते। नंबर भाई 1। जो बचते हैं ना, वो बचते हैं, वो बचते, मतलब कहने का जो बचे अच्छा, मारे सब आपके थे। ये इंसिडेंट किस जगह पे हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली पे और भी जगहों पे हुआ था। अमित अमित रुक ये जाइए, एक ये किस जगह पे हुआ था सर? मिस्टर एवार किस जगह पे हुआ था? दिल्ली में और भी अच्छा, जगहों पे हुआ दिल्ली था, दिल्ली दिल्ली लेकिन पंजाब में? लेकिन मेनली है दिल्ली पंजाब में। दिल्ली पंजाब में? दिल्ली पंजाब में नहीं है। पक्की बात है? क्यों, दिल्ली पंजाब में है? पूछ रहा हूँ। नहीं, दिल्ली पंजाब में नहीं है। अच्छा, पंजाब में नहीं है। ओके 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 ओके। पंजाबी सिखों का इस टाइम पे कोई इंसिडेंट है जहाँ पे इसी तरीके से हुआ हो? सेम टाइम का, सेम इवेंट का? कैसे मतलब? पूछ रहा हूँ, सेम टाइम पे जब दिल्ली में हो रहा था उस टाइम पे पंजाब में भी उन्होंने किसी इलाके को पकड़ के वहां पे मार कुटाई शुरू की? पंजाब में? हाँ हाँ। नहीं, पंजाब में हरियाणा के नहीं हुआ। अंदर नहीं हुआ? कंफर्म बात नहीं हुआ? नहीं, हाँ अच्छा, तो नहीं हुआ। सारे सारे सिखों उस वो तो बेसिकली जेनोसाइड नहीं हो रहा था सिखों का, करेक्ट? नहीं, पंजाब में मतलब सिखों का आप बोल रहे हो कि पंजाब, इस दिल्ली टाइम पे दिल्ली में किस सिखों का हुआ? ये इवेंट दिल्ली में हुआ सिर्फ, राइट? ये इवेंट मतलब गलों में टायर रेप वगैरह हाँ, हुए ये जितने वहां पे भी। हुआ। हाँ, तो ये ऑब्वियसली। दिल्ली में तो हुआ। ये सारे सिखों को तो नहीं मार रहे थे ना? सिख तो उधर है सारे, 15% के करीब सिख तो पंजाब में है, वहां पे क्यों नहीं हो नहीं रहा? नहीं, बाहर भी बहुत है भाई, हजारों पंद्रह लाखों की अब भाई गिनती में। हजारों लाखों तो हैं, हर जगह पे ही होते हैं भाई। क्या बच्चों वाली बात कर हम्म रहे हो? मैं आज पैदा हुआ हूँ। बात ये हो रही हम्म। है कि जहाँ पे आपकी मेजोरिटी है वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। नहीं, अच्छा, वहां पे था, जहाँ पे पंजाब में, वहां अच्छा पे भी मारा गया। पंजाब में उस टाइम के ऊपर अगर 15% सिख थे तो हिंदू कितने थे? पंजाब में उस 15% सिख नहीं थे भाई। मेरा कहने का मतलब पंजाब में तो पंजाब में कितने सिख थे? कितने साठ परसेंट थे? परसेंट है। साठ 60%? परसेंट ओके, 60%। हम्म ओके जी, 60%। 1980 में पंजाब में 60% सिख थे, ओके। तो 1984 में 1984 में, तकरीबन। अच्छा, तो वहां पे कुछ नहीं किया गया? नहीं, वहां क्योंकि जब सिस्टम में पावर है, जिसके हाथ जिसका राज तिसी का सपना, जिसके तो साथ पास पावर होती है वही वही होता है, उसी की सो किताबें सो चलती हैं। सो एविडेंस भी उसी के होते हैं। पंजाब के अंदर कोई लड़ाई नहीं हुई, करेक्ट? नहीं होती, जैसे कत्लेआम नहीं हुआ, नहीं जैसे हुआ, सरों हाँ, पे ओके, नहीं हुआ। मतलब तो भाई अभी आपने आप अभी एडम। एक एक सेकंड हजरत, अब मैं जरा बात खत्म कर लूं। अभी आपने कहा था कि आप और कुछ लोग सिर्फ बच गए उस जेनोसाइड से। जेनोसाइड जो होता है वो एक पर्टिकुलर आबादी में, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, एक छोटी सी कन्फाइंड जगह के ऊपर नहीं होता। दैट इज नॉट कॉल्ड जेनोसाइड। अगर आइडियोलॉजिकली और रिलीजियस वॉरफेयर होता तो भाई साहब वो 1947 में हुआ था रिलीजियस वॉरफेयर। उसके अंदर पूरा इंडिया और पूरा पाकिस्तान शामिल था। दैट इज कॉल्ड रिलीजियस वॉरफेयर। लिहाजा 1984 का जो इंसिडेंट है उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने मेरी बातों का जवाब देकर साबित कर दिया इस चीज को। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो पंजाब और ये दिल्ली का जो एरिया, यूपी ये है यार, दिल्ली वाले एरिया को क्या कहते हैं? ये दोनों नहीं, बाउंड्री बाउंड्री दिल्ली वॉल पे हैं। दिल्ली किस ना, किस दिल्ली किस स्टेट में है? नेम अलग द स्टेट स्टेट है। यार, नेम द स्टेट। नहीं, दिल्ली दिल्ली खुद दिल्ली है। खुद में एक स्टेट है। एक स्टेट है तो ये दोनों बॉर्डर Yes. दोनों साथ साथ लगते हैं ना। पंजाब खत्म होता है वहां से दिल्ली वाली स्टेट हाँ, शुरू हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, हरियाणा। यूपी, 5-6 स्टेट हरियाणा, लगती है थैंक यू। दिल्ली। तो तो बेसिकली इट इज सो इजी कि इस जगह से ढेर सारे हिंदू पंजाब में घुसे और पंजाब की माँ बहन एक करना शुरू कर दें सिखों की, अगर ये रिलीजियस वॉरफेयर हो। क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के अंदर मेरे ख्याल में 7 या 8% हिंदू होंगे उस जमाने में, या 10% होंगे, या 12% होंगे टोटल, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। लेट मी गूगल इट, एक सेकेंड। ओके जी, 1980 में हाउ मेनी सिक्स वर इन इंडिया वर्सेस हिंदूज, लेट मी सी। 1.8% आता है। सिख तो आज ओके भी जी, दो हैं। ओके जी, सिख पॉपुलेशन वाज ओनली 1.7% इन इंडिया। ओके, 1.7% की पॉपुलेशन है भाई साहब। 1.7% की पॉपुलेशन को
80% हिंदुओं को खत्म करने में कितनी देर लगनी चाहिए यार? अगर एक शुरू हो गई है जेनोसाइड वॉरफेयर, कितनी को देर लगनी चाहिए? 5 ये दिन, 10 पॉलिटिकल दिन, था ना 15 दिन? Exactly, it was political at a particular location, एक particular आबादी, एक particular कोना, based on the political warfare जो कि उस वक्त चल रहा था। अच्छा, असल में बात ये है दोस्तों, आपने देखा कि मुसल्टो की तरह इस भाई ने जंप लगा लगा के कितने टॉपिक चेंज किए। डड्डू वांग। हाँ, टॉपिक पे टॉपिक चेंज किया गया है, टॉपिक पे टॉपिक, टॉपिक पे टॉपिक, टॉपिक पे टॉपिक, लेकिन इवेंचुअली अमित साहब वो वीडियो आपने सेव की हुई है लोकेशन जहां पे इसने कहा था कि हमें अपना देश चाहिए? मेरा रिस्टार्ट हो गया था पीसी, मैं वापस लाता हूँ। जरा वो ले आइएगा। ये भाई साहब हम्म, जब शुरू में आए थे तो अच्छा मुझे अब जो है ना वाकई में बड़ी जो है वो हो गया है इन लोगों की दिमागी तवाज़न के ऊपर। पहले मैं नहीं समझता था इतना। पहले मैं कहता था कि यार कनाडा के अंदर ये कुछ पागल बोंतरे हुए बैठे हैं। मगर अब मुझे लगता है कि वाकई यार ये बहुत ज़्यादा बोंतर गए। और कभी ये बंदा किसी और जगह पे जंप करता है, कभी किसी और जगह पे। कभी ये कह रहा है कि ये हिंदू लोगों को बचा रहा है मुसलमान होने से, फिर ये अल्लाह को बीच में डाला हुआ है भगवान के तौर पे। फिर इसको पूरे इंडिया का नाम ही खालिस्तान रखना है, कभी इसको खालिस्तानी आइडियोलॉजी रखनी है। लाइक एक कंट्री जिसके अंदर 1.7% सिख हैं, 1.7% टोटल, उनको अपना देश चाहिए और वह देश भी इंडिया से चाहिए। हालांकि उस देश की सेंटर इनकी पाकिस्तान बनती है। व्हाई डू दे वांट इट फ्रॉम इंडिया? अभी इसने बात की ननकाना साहब की। ननकाना साहब तो पाकिस्तान में है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। और इन्होंने बोला कि ननकाना साहब जो है वो पाकिस्तान में है। मैंने इसीलिए लिखी हुई है इसकी तमाम चीजें ताकि अ, हम भूल ना जाएं और ये कह ना सकें इन्होंने जो जो कहा वो लिखा हुआ। सो मेरा बेसिक सवाल ये होगा कि ये इंडिया से डिमांड क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो इन्हें पाकिस्तान से डिमांड करना चाहिए कि ननकाना साहब जो हमारा सेंटर है वो पाकिस्तान में है, मुझे वो दो। व्हाई इज इट कि डिमांड इंडिया से की जा रही है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान? मगर नहीं, ऐसा नहीं है। टुडे इज द फर्स्ट डे कि संगा जी से बात करने के बावजूद मुझे ये वाली मूवमेंट की जो है ना सेंस समझ नहीं आ रही थी। मुझे यानी सही मानों में जो है ना गेम समझ नहीं आई थी। और संगा जी जो है ना बड़ा कुछ मुझे बता रहे थे कि यार ये भी पाक मुसलमानों की तरह सेम तरीके से बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने कभी पहले इंटरेक्शन नहीं किया था इस तरीके से। आज साबित हो गया कि संगा जी जो भी कह रहे थे ना हरफ ब हरफ सही कह रहे थे। इसीलिए मैंने हकूक जी को और किसी को बोलने नहीं दिया। मैं कहा जरा मैनू समझन दो कि गेम की होन डई। और आज ये 1 घंटे में मैंने खालिस्तानी मूवमेंट को जितना समझा ना, मैंने पिछले 4 सालों में नहीं समझा था। ये आज एक डिस्कशन से मुझे समझ लग गई है 100%। और ये बहुत ही मैं कहता हूँ एक ऐसी मूवमेंट है जो कि मुसलमानों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को 100% सेपरेट दिखाते ही हैं। वो तो दिखाते ही हैं हमारा कल्चर फ़र्क है, हमारा फलाना फ़र्क है, हमारा फलाना फ़र्क है। वो बीच में सिर्फ़ एक फुलझड़ियाँ बना के अपने आप को साबित कर देते हैं, तो बड़ा ईज़िली आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। उनको सेग्रीगेट और सेपरेट कर लेते हैं। मगर यहाँ पे इनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कहते हैं ना मुझे मुसलमानों के साथ मुझे बोलने तो दो और बोलने दो में जब आपने देखा जितनी दफ़ा भी इसको बोलने दिया, इसने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक और जगह घूमने-फिरने चला गया। आई एम अमेज़्ड, आई एम लिटरली अमेज़्ड कि हर वो थियोलॉजी, हर वो आइडियोलॉजी जिसकी बेस कोई नहीं ना होती, उधर पैराग्राफ्स होते हैं। उधर पैराग्राफ से पैराग्राफ्स आते हैं और कुछ भी नहीं आता और जंप आती है। टॉपिक्स टू जंप टू टॉपिक। बड़ा ज़बरदस्त है यार। आई लर्न्ड अ लॉट। आई लर्न्ड अ लॉट। अमित साहब ढूँढिए अपनी जगह? हाँ ओके, एक मैं सेकंड। लाता हूँ ज़रा। ये ज़रा सुन लीजिएगा। अमित साहब चला दें। आ गया।
आमिर ये साहब तो मैं अभी कर तो रहा हूँ, मुझे करने तो देना यार तू। हाँ चले प्ले करें आप। ये जरा ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ पॉज करो। मेरा सवाल क्या था और इसका जवाब क्या। अब ये अगले 4 मिनट तक यहीं पे घूमता फिरता रहेगा, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट होगी। प्ले करिए जी। इसको 1.2 ਜਿਹੜੇ एक्स पे कर दें। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ मेवाड़ ਦੇ साहब ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ भाई साहब ਉਦਣ देखो ਗੱਲ देखो गल ਕਰਦੇ सुनो, भरा जी गल पहले मेरी गल सुन लो, याद रखो मेरे नाल, ठीक है। ਮੈਂ मैं पहले ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਮਝ, ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹਾਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ पॉज करना, ਕੌਮ ਦਾ पॉज करना। इसराइल का क्या ताल्लुक है यहाँ पे? अव्वल तो इसराइल कभी बना नहीं, मैंने इसको जवाब दिया है अभी आगे। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ खालिस्तान के बारे में कि तुम क्या मानते हो? इसराइल पे जाने की क्या तुक थी अभी? अभी पहले अपनी आइडियोलॉजी को तो बताओ ना, फिर उसके बाद जो है ना समझाओ कि यार दिस इज द रीजन। भाई रीजन तो बाद में, तो पहले ये तो बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सुने आगे सुनो। ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ Stop. ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਿਟਲਰ ਨੇ So ਮਾਰਿਆ stop. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ यार ਨਾ, ਜਦੋਂ जनाब देखो इसने कह दी जब तक ਉਹਨਾਂ ਨੇ सेपरेट चीज नहीं बनती। तो ये शुरू कहाँ से शुरू हुआ? संगा जी सुना है आपने? हकूक जी सुना है आपने? खास ट्रेनिंग लेती है मेरे भरा। यार मैंने कहा था स्टॉप कर दिया मैं। देखो बात संगा जी हाँ। सुने, पहले इसने आके झूठ बोला कि हम्म मैं उनके साथ भी नहीं हूं, उनके विरोध में भी नहीं हूं। उसके बाद इसने खुद कहा है कि जब तक सेपरेट कंट्री नहीं बनती ये नहीं होता और वो नहीं होता और फलान नहीं होता ढमकान नहीं होता, जिस तरह इसराइल की बात है। हम्म भाई साहब फिर ये कैसे कह सकता है कि न्यूट्रल पोजीशन पे है? ये तो कह रहा है कि न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं है। ही वांट्स अ सेपरेट खालिस्तान। हम्म फिर वहां से आगे आगे मूव करते हुए जब मैंने सारी बातें करना शुरू की तो फिर ये आ गया नहीं नहीं पूरे भारत को ही जो है, मैंने कहा बाउंड्री वॉल दे दो। अब बाउंड्री वॉल देना नहीं चाहता था, बाउंड्री वॉल देता तो मसला हो जाता, ठीक है। इसने कहा नहीं नहीं पूरे भारत को ही खालिस्तान कह दो। अच्छा फिर उसके बाद आया जी भारत के दो नाम रख दो, भारत और खालिस्तान। हम्म फिर उसके बाद यानी इमेजिन करो द शिफ्ट इन द पैराडाइम दैट ही हैज डन ड्रामेटिकली। दैट्स द शिफ्ट इन द पैराडाइम, ओके। एंड ये सारा पैराडाइम शिफ्ट जो है ना वो सारा का सारा पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने सुनना है वो जरूर जाके सुने, मैं इसको सेपरेट कटिंग करके भी डालूंगा। लेकिन ये बंदा बाद में ये ना कहे कि यार मुझे मौका नहीं दिया, क्योंकि ये भी मुसलमानों की तरह वही करेगा, मुझे मौका नहीं दिया, मेरी गल नहीं पूरी हुई, मेरा फलाना नहीं होया। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसको 2 मिनट दूंगा अनइंटरप्टेड कि ये अपनी फाइनल बात रखे, कोई नहीं बोलेगा इस 2 मिनट में, और ये अपनी पूरी की पूरी फाइनल बात रखे। यही है ना 2 मिनट वाला? हाँ यही है। ए वार साहब मैं आपका स्टेज ले रहा हूँ, 2 मिनट है आपके पास पूरे अनइंटरप्टेड। उस 2 मिनट के बाद सबको बाय बाय कीजिए, थैंक यू कीजिए और चले जाइए, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रीम को बाकी साइड के ऊपर लेके जाना है जो मेरा आज का टॉपिक था। बट आई एम गोना गिव यू अनइंटरप्टेड 2 मिनट्स, ताकि आपको ये ना हो लगे कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया। आप आ गए हैं स्टेज पे सर, ये 2 मिनट आपका स्टार्ट हो गया। हाँ भाई थैंक यू आपका, लेकिन मैं कुछ बातें आपको
दो मुझे आप 4 मिनट दे दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बस मेरी यही बात है कि भाई जितना तक एक कौम उसकी सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनको ये है कि आने वाले समय में भी उनको मारा जाएगा, वो सिक्योर नहीं होती, उतनी देर तक उसकी सिक्योरिटी के लिए लड़ाई होती है। वो देश में मिल जाए, सेपरेट देश में मिल जाए, बात सिक्योरिटी की होती है। तो ये बात भाई, आप इस बात को जैसे मर्जी लीजिए, अगर पाकिस्तान ने मारा 1947 में, 1984 में, मतलब इधर से हम मरे, तो आगे भी हम मरेंगे। सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट एक रिलीजन की, ठीक है ना। मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे जब हजूम चढ़ के आता है तो वो नहीं देखता कुछ, उनको भीड़ को बहकाना बहुत आसान होता है। जब सिक्योरिटी हो तो बात कौम की सिक्योरिटी पे खत्म हो जाती है। बस मेरी यही बात कहनी है, समझ रहे हो ना। हो गए भाई, मेरी बात खत्म हो गई। 47 तो सेकंड हुआ मैं, है। चलो इसमें मैं अब आपको आप बोल दोगे क्या, मतलब ये बात क्या, जब मैं अपना कुछ प्रचार करता हूँ तो ये मेरी फाइनल बात थी। तो जैसे जुजू भाई, संगा भाई, ऐसा नहीं है कि इनकी बातों से मैं सहमत नहीं, सहमत भी हूँ, उसमें कुछ मैं पॉइंट पाकिस्तान की ओर से ऐड करना चाहेगा, वो आपके दिमाग में नहीं आए होंगे, लेकिन मैं रख देता हूँ कि जैसे वो बोलता है कि पाकिस्तान के साथ है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई सिख नहीं है, हिंदुस्तान में सिख हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में जब मतलब बहुत बहुगिनती पे वो लकीर निकाल के मारते हैं और ये साथ में रला के मारते हैं, चलिए सर, मारो थैंक यू सो मार मच सर, दोनों आपका तरफ टाइम से पूरा हो गया बस। सर। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल थैंक यू भाई। रखें। लो जी, एंड में मुद्दा वही था। और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जिस तरीके से मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान में मुसलमानों को मान रहे हैं, क्योंकि एक की आइडियोलॉजी दूसरे की आइडियोलॉजी फर्क है, बिकॉज वो हैं दोनों मुसलमान लेकिन उनकी थिंकिंग और उनकी आइडियोलॉजी विद इन द इस्लामिक स्क्रिप्चर इज डिफरेंट। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद देम एज वेल। नंबर 2, हिंदू और सिख, अगर कोई भी लड़ाई इस वक्त हो रही है तो मेरे ख्याल में इस बेस के ऊपर लड़ाई तो लाजमन होगी, रादर ये सिविल वॉर होगी। ये जो ये अभी डिमांड है, उस डिमांड को देखा जाए तो ये डिमांड तो जो है वो सिविल वॉर की तरफ लेके जा रही है। दुनिया की कोई भी कंट्री में अगर कोई ग्रुप खड़ा होकर उस कंट्री को डिवीजन करने की कोशिश करता है तो उसको पता है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है अमित साहब उसको? देशद्रोही। हिंदी में यही कहते हैं ना, देशद्रोही कहते हैं ना। तो अगर ऐसी चीज के ऊपर आवाज उठेगी तो इसको इसी तरीके से लिया जाता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कनाडा हो। अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर हुई थी जो कि बड़ी फेमस है, और वो इसी बेस के ऊपर हुई थी कि साउथ और नॉर्थ जो है वो आपस में डिवीजन हो गई थी, और साउथ में एक और प्रेसिडेंट खड़ा हो गया था जो अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता था। दिस इज कॉल्ड सिविल वॉर। सो मेरा ख्याल है कि 1.7% लोग अगर इंडिया में सिविल वॉर करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में कि वो जानबूझ के चाह रहे हैं कि अपने आप को विक्टिम कार्ड साबित करें और कुछ भी नहीं, बिकॉज दे आर 1.7%, नॉट मोर। संगा जी क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई सिविल वॉर नहीं होने वाली, कोई इनकी औकात नहीं है इतनी। ये ज़्यादा से ज़्यादा वही कर सकते हैं, ये फिर जाके जो इन्होंने 3 बार पहले किया है, 84 में, फिर 86 में, फिर 89 में, 88 में या 9 में इन्होंने किया है, 89 में, ये अमृतसर जाके हरमंदिर साहब जाके छुप के बैठ जाएंगे जैसे इनका वो टेररिस्ट संत बैठा था, और ये कुछ नहीं करने वाले। और फिर इनका हशर वही होगा जो पिछली बार हुआ था, हर बार हुआ था, हमेशा वही होगा, इनको जूते मार के कुचल करके निकाला जाएगा। बाई सिक्योरिटी की बात करके गया है इंडिया में। पंजाब का जो सिख है ना, पंजाब में जो हर सिख है, जो अभी आपने पाकिस्तान के उसकी ताल्लुक रखते बात की है कि वहां पे भी मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। इंडिया के जो पंजाब का जो सिख है ना, जो हर सिख है, वो तब तक ही उसकी सिक्योरिटी है जब तक वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर लागू है, क्योंकि खालिस्तान है जटिस्तान, ठीक है। और एज अ जट मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हमने ना तो मजहबियों का जीना ना हराम किया, तो हमें बता देना, रामगढ़ियों का भी हमने करना है, लुबाना का भी हमने करना है, कमारों का भी हमने करना है, राजपूतों का भी हमने करना है, ठीक है। क्योंकि हम मेजोरिटी में है, मतलब कि सिखों की मेजोरिटी हम है, और ये जटिस्तान जो है ना, पावर में जट है पंजाब में, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो फिर मतलब कि ये बोल रहा है कि हर किसी को अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना बनाना चाहिए, तो फिर ठीक है, फिर खालिस्तान पहले दे देते हैं सिखों को, फिर सिखों के साथ मजहबी जो हैं वो लड़के बोलेंगे कि हमें खालिस्तान चाहिए अपना, फिर रामगढ़िया बोलेंगे हमें, लुबाना बोलेंगे हमें, हर जाति का सिख बोलेगा हमें चाहिए। तो कोई इसमें वो है नहीं इसकी सेंस के, इसकी आखिरियत, इसके आर्ग्यूमेंट का इनका शुरुआत और आखिरी सेम ही होती है कि कहीं पे नहीं पहुंचना है इन्होंने, कोई शुरुआत नहीं है, कहीं पे नहीं पहुंचना है। जी मैं बस यही बोलूंगा, कंफ्यूज्ड कौम है। और हाँ, लास्ट पॉइंट मैंने देना था इस भाई के, जो लास्ट में भी ये बोलता गया ना कि मैं इनकी बातों के साथ सहमत भी हूँ, तो वो सबसे डेंजरस कौम होती है जो कंफ्यूज्ड कौम है, जिनको पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। इसको संगे के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको संत के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बंदा वो है जो डिबेट चाह रहा था मेरे साथ। अगर तू डिबेट मेरे साथ चाह रहा था तो मतलब तू खालिस्तानी है। 2% कौन सी हिस्ट्री में 2% पॉपुलेशन की मांग के ऊपर नाम चेंज किया, वो नाम जो उनकी स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं नहीं आता। उनके किसी गुरु ने नहीं कहा खालिस्तान राज करेगा। खालसा की इंटरप्रिटेशन आप 1000 तरीके से कर लो, ठीक है, और जो राज करना था खालसा ने, वो रणजीत सिंह के राज में 5 खालसे राज कर चुके हैं, वो खत्म हो चुका है, अगर आपने वैसे भी लेके चलना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।